Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Usha Sharma, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Rabindranath Tagore University. It is my honor to welcome you all in one-day workshop on entrepreneurship development phases organized by Faculty of Commerce and Management, Humanities and Languages, CSIT, Rabindranath Tagore University. Dear students, we all know the word entrepreneur because this is a part of our syllabus. But यदि उद्यमिता शब्द को हम गहराई से समझें और सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें और इसे समझने की अच्छी तरह से कोशिश करें, तो हम ये जानेंगे कि उद्यमिता ही हमारे जीवन में हमारे करियर को बना सकती है। हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमिता शब्द को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, एंटरप्रेन्योर वर्ड को डिटेल में जानने के लिए मुझे ये कहते हुए काफी प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे बीच एमिनेंट स्पीकर के रूप में हैं मिस्टर तरुण बेदी सर, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर EDII अहमदाबाद। साथ में ही हैं डॉक्टर मोहम्मद हानिफ मेवाती सर, फैकल्टी EDII अहमदाबाद। सर, आपका हम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है और इसी को आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे गेस्ट के वेलकम के लिए डॉक्टर संगीता जौहरी मैम, डीन ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम वे आएं और सर का स्वागत करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Dr. Usha ma'am. Thank you. So, it is indeed a privilege for our university to have the benign presence of Tarun sir, because we got an opportunity to have the insights of entrepreneurship by Tarun sir last year, if I'm not wrong, sir, the same time, roughly in, I think, February. So, welcome you, sir, Tarun sir. And in parallel with this, I would like to extend a warm welcome to Mewati sir. I also know that sir is really a pioneer in this field of entrepreneurship. And I welcome you on behalf of Faculty of Commerce, Management, Humanities and Language and CSNIT. And I also welcome you on the behalf of IISc, whose Vice President is also with us, Dr. Deepak Motwani, sir. And IISc members are also with us, sir. Institution of Innovation Council, an initiative supported by MHRD. If we see the purpose of this council is just to set the mindset. I always believe in 3 I's, which I always talk about. And earlier in the morning also, I was talking about these 3 I's, that is intent, inclusion, and innovation. And I think these 3 I's goes in parallel. If we have the intent towards a particular thing, so definitely it helps to develop the innovative mind. And when we talk about the innovation never talks about on the upper level of the society. We should reach to the grassroots also. तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो IISc का एक रोल है, AIC जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं उनका भी एक रोल है कि इनोवेशन को हम सिर्फ ऊपरी सतह पर ना देखें। इनोवेशन हमारे जो रूरल और जो अदर एरियाज हैं वहां पर भी बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, उसको भी हम टच करें। और हैंड होल्डिंग जिसकी हम बात बार बार एंटरप्रेन्योरशिप में करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो पक्ष हैं, जो अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फेजेस हैं, हम सब अगर अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो हम सब जो है वो वेल्थ क्रिएटर्स के नाम से ही जाने जाते हैं। बट सडनली एक शिफ्ट हुआ और आज हम फिर से उस मुकाम पर हैं जहां हम आत्मनिर्भरता की बात फिर से कर रहे हैं इन ऑल द स्फेयर्स। सो डेफिनेटली ये जो वर्कशॉप है डेफिनेटली ये बच्चों को और जो हमारे IISc मेंबर्स हैं उनको ये इंसाइट देगी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के फेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं, उद्यमिता के रियल मायने क्या हैं और उद्यमी बनने के लिए जो विशेषकर जो विशेषताएं हमें लगती हैं कि होनी चाहिए वो किस तरह से आपके पास हैं उसे जाने और कैसे आप उसे इनकलकेट कर सकते हैं इन सारे सोर्सेस के माध्यम से। लाइक EDII is pioneer into it, and so not to say too much on entrepreneurship before the two you can say the two epitome of this institutions are with us. So
I will not take too much of time. I really welcome these two guests, and it is indeed our privilege that you have accepted this invitation and you are with us today. I hope this day long, that 2 hours will be the most productive hours for our students, for our teachers, and for all the IISc members. So looking forward to have the insights from Tarun sir and from Mewati sir. Once again, a warm welcome to all of you. And I think Usha ma'am, please take the charge to proceed further with this workshop. Thank you. थैंक यू संगीता मैम. तरुण सर, मैं आपसे प्रोफाइल शेयर करने की परमिशन चाहती हूँ. जी जी जी, प्लीज. फर्स्ट एमिनेंट स्पीकर के रूप में हमारे बीच हैं मिस्टर तरुण वेदी सर, सीनियर एसोसिएट फैकल्टी EDII Ahmedabad. Sir has 25 years of experience in the field of entrepreneurship development, engaged in the area of rural development, development of micro enterprises, and many other fields. He has also been engaged in action research, evaluation, study, etc. He is actively contributing Startup Village entrepreneurship program of the Ministry of Rural Development. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, madam. Thank you, Jory madam. Thank you, दीप्ति मैडम. सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से मेरे कलीग डॉक्टर हनीफ और EDI की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का, कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बात करने का. और दूसरी चीज ये है कि अब EDI और मैं और हनीफ गेस्ट नहीं है आप लोगों के लिए. हम लोग लगभग एक ही इंस्टीट्यूट है और एक साथ ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं. और फ्यूचर में भी हम लोगों की जो प्लानिंग है, हम लोग साथ मिलकर जरूर ये जो उद्यमिता का हमारा काम है, इसको हम आगे ले जाने का और भी बड़े स्तर पर और वृहद स्तर पर इसका प्रयास करेंगे. मैं फिर से धन्यवाद करता हूं. मैं अपने साथी की ओर से, अपने साथी हनीफ और मेरी तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं जो आज इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं. जैसा कि आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं और डॉक्टर हनीफ इसके ऊपर बात करेंगे. मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और डॉक्टर हनीफ थोड़ा डिटेल में आपसे इसके ऊपर बात करेंगे. और लगभग 1:15 बजे के बाद, 1:15 के बाद में या 1:20 के बाद में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे. तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ उद्यमिता के बारे में बात करता हूँ, इसके इतिहास के बारे में बात करता हूँ और ये उद्यमिता शब्द क्यों आया, कैसे आया और आज इसकी उपयोगिता क्या है, और उसके बाद में डॉक्टर हनीफ इसको आगे लेकर जाएंगे. तो सबसे पहली बात ये है कि ये अगर आप देखें तो हमारा देश जब आजाद हुआ, तब हम लोग केवल स्वरोजगार की बात करते थे और जितनी भी योजनाएं सरकार की होती थी उसमें एक ही चीज कही जाती थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स. लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्ड रिप्लेस हो गया है और अब हम उद्यमिता की ही बात करते हैं. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, कब हुआ और हम कब स्वरोजगार से उद्यमिता पर आ गए, तो ये हमको समझने की जरूरत है. और इसके पीछे अगर हम जाते हैं, देश की आजादी के पहले की ओर बात करते हैं, पिछली शताब्दी की बात करते हैं, तो अगर आप और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे देश में ऐतिहासिक काल में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ण व्यवस्था रहती थी, जिसमें कि कार्य के आधार पर लोगों को बांटा गया था कि भाई ये क्षत्रिय है तो ये फाइटर्स हैं, ये शांति का काम करेंगे, ये रक्षा का काम करेंगे, या ये एक विशेष जाति के हैं तो ये धंधा करेंगे, ये एक ब्राह्मण वर्ग के हैं तो ये एजुकेशन का काम करेंगे. इस तरह से एक वर्ण व्यवस्था हमारे देश में स्थापित की गई थी. वो आगे चलकर हालांकि उसका रूप बदल गया, लेकिन ये कार्य के आधार पर ये जो जातियों का जो आवंटन किया गया था या जो जातियां बनाई गई थी, ये सिर्फ कार्य के आधार पर बनाई गई थी. पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनते गए और वो ग्रुप की जो आगे की पीढ़ियां आई वो उस काम में एंगेज होती गई, इन्वॉल्व होती गई. और ये एक समय ऐसा आया कि एक विशेष जाति वर्ग के लोग ही कहा जाता था कि यही केवल बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं या धंधा कर सकते हैं. तो ये एक हमारी जो वर्ण व्यवस्था रही, उसका ये एक अलग पहलू है जिसको समझने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, या आज जो हम देखते हैं कि उसकी कमी क्यों है,
उसका एक बहुत बड़ा कारण ये वर्ण व्यवस्था भी रही, जिसमें कि एक विशेष वर्ण के लोग या विशेष एक कम्युनिटी के लोग ही बिजनेस में आगे आते थे। 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत गहन रिसर्च प्रारंभ हुए कि क्या ये सत्य है कि केवल एक विशेष जाति के लोग ही बिजनेस में आ सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, क्या दूसरे लोग ये काम नहीं कर सकते? और इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए, एक्शन रिसर्च हुए, और तब ये बात सामने आई कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट ओनली बॉर्न, दे कैन बी क्रिएटेड। एंटरप्रेन्योर केवल पैदा नहीं होते हैं, वो क्रिएट भी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें कुछ कॉम्पिटेंसीज जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आवश्यक हैं, उद्यमी बनने के लिए आवश्यक हैं, यदि अगर उनमें वो कॉम्पिटेंसीज कम हैं तो उनको विकसित किया जा सके। और उसी रिसर्च के अगले चरण में ये भी देखा गया कि क्या ये कॉम्पिटेंसीज अगर नहीं है, क्या ये जो गुण उद्यमी के होने चाहिए ये नहीं है, तो क्या इनका विकास किया जा सकता है? तो ये पाया गया कि ये भी संभव है कि अगर कोई व्यक्ति में उद्यमी के जो गुण आवश्यक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक इनिशिएटिव लेना, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, परसिवरेंस, इस तरह के बहुत सारे जो उद्यमी के गुण होते हैं, वो अगर उसमें नहीं है या उनमें कुछ कमी है, तो क्या उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या उनको डेवलप किया जा सकता है? तो रिसर्च में ये बात भी एस्टेब्लिश हुई कि ये सारे गुणों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए, एक प्रॉपर इंटरवेंशंस के जरिए इन सारे गुणों को विकसित भी किया जा सकता है। तो दो चीजें ये एस्टेब्लिश हुई। पहली चीज ये कि एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि केवल पैदा होंगे वही या एक विशेष कम्युनिटी में होंगे वही एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्रिएटेड, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट भी किए जा सकते हैं। तो जब ये अवधारणा मजबूत हो गई कि एंटरप्रेन्योर्स बनाए भी जा सकते हैं, उनमें उन गुणों का विकास भी किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए, प्रॉपर टीचिंग के जरिए, तब फिर इसका अगला स्टेप ये आया कि अब इसको कैसे किया जाए। तब आपने देखा होगा कि 1980 के दशक में भारत सरकार ने इस आवश्यकता को और इसकी महत्ता को समझा कि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता हमारे जो युवा वर्ग है, जो युवा शिक्षित वर्ग है, उनके लिए आने वाले समय में इसकी आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ने वाली है। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश के 4 हिस्सों में 4 रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में ईडीआई ऑफ इंडिया, जहाँ से हम लोग आते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान उसका हिंदी में नाम है, और अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में उसको ईडीआईआई कहा जाता है। तो वेस्टर्न जोन के लिए ईडीआईआई की स्थापना की गई। अगर आप साउथ में देखेंगे तो निम्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो निस्बड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये 4 संस्थानों का जो गठन है, वो 4 संस्थानों का गठन 1980 के दशक में किया गया, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में आने वाले समय में निश्चित रूप से इस देश में एक ये बहुत बड़ी आवश्यकता होगी जब हमारे युवा वर्ग को उद्यमिता की ओर ले जाना आवश्यक होगा। एक रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन चारों संस्थानों को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये स्टेट लेवल पर कैपेसिटी डेवलप करें, ये स्टेट लेवल पर रिसोर्सेज डेवलप करें, वो टीचर्स के माध्यम से, ट्रेनर्स के माध्यम से, जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। तो इस तरह से इन चारों संस्थानों को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये पूरे देश में इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें, मॉड्यूल्स डेवलपमेंट करें, स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में इन सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। तो इस तरह से ये सभी संस्थान पिछले लगभग 40 वर्षों से इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं, और इन कार्यों के साथ साथ ये राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को की स्किल बिल्डिंग और रिसोर्स बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, जब हमारा देश आजाद होता है, तब आपने देखा होगा कि अगर आप शुरुआत के दशक की 50 और 60 के दशक की बात करें, तो भारत सरकार ने बहुत सारी स्वरोजगार योजनाओं को फ्लोट किया। बहुत सारी स्वरोजगार योजनाएं आई, जैसे इंदिरा रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, इसके अलावा भी अन्य सारी योजनाएं थी। उस समय पर यह माना गया कि अगर जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, अगर हम उनको फंडिंग सपोर्ट दे दें, तो वो अपने लिए एक रोजगार खड़ा कर सकते हैं और वो अपना स्वयं का पालन कर सकते हैं। और यही हुआ। शुरू में जो स्वरोजगार की योजनाएं थी, उसमें उतना ही विजन को ध्यान में रखा गया, उतना ही सोच को ध्यान में रखा गया
कि वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि वो उसने ITI में वेल्डिंग की ट्रेनिंग ली है, तो उसको इतना फंडिंग सपोर्ट दे दिया जाए कि वो एक वेल्डर की छोटी सी शॉप अपनी इस्टेब्लिश कर ले और अपना जीवन यापन कर ले। और ये कई वर्षों तक ये चीज चलती रही कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग लगे रहे और वो अपने लिए रोजगार उत्पन्न करते रहे। लेकिन ओवर द पीरियड ये चीज आगे जब समझ में आई कि ये केवल स्वरोजगार देने से इतने बड़े देश की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर हमको और इससे ब्रॉडर विजन पर बात करनी पड़ेगी और वृहद स्तर पर सोचना पड़ेगा कि हम इस मिशन को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद का जो फेज आया उसमें ये हुआ कि केवल फंड देने से काम नहीं चलेगा, केवल पैसा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पैसा देने के साथ साथ हमको ट्रेनिंग का सपोर्ट देना पड़ेगा, हमको हैंड होल्ड करना पड़ेगा लोगों को, जिससे कि लोग एक बड़े बड़े रोजगार की तरफ जा सकें, एक उनका विजन बड़ा हो सके। जब ये बात सोच में आई कि ये बड़े रोजगार की तरफ जा सकें या कुछ बड़ा सोच सकें, तो निश्चित रूप से जब उसकी आवश्यकताओं को महसूस किया गया तो वो एक स्वरोजगार से बहुत ज्यादा थी। वहां पर सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि एक विजन डेवलप करने की जरूरत थी। अगर आप मुख्य रूप से फर्क देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये रहता है कि हम एक बिजनेस या एक व्यवसाय एक नैरो विजन के साथ में शुरू करते हैं कि जहां पर मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूं और अगर मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट भी देता हूं तो वो सिर्फ मेरे लिए काम करता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि उद्यमिता और स्वरोजगार में क्या अंतर है। जब हम उद्यमिता की बात करते हैं तो वहां पर हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, वहां पर एक पूरा जो हमारा परिवार बन जाता है उसके लिए काम करते हैं। और जिन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वो भी मेरे लिए काम नहीं करते, वो मेरे साथ काम करते हैं। तो फर्क ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब हम करते हैं तो मैं जिसको एम्प्लॉयमेंट देता हूँ वो मेरे लिए काम करता है। जब मैं उद्यमिता की बात करता हूँ तो जो लोग मेरे लिए जिनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ वो मेरे साथ काम करते हैं। तो ये मेरे लिए काम करना और मेरे साथ काम करना ही स्वरोजगार और उद्यमिता की परिभाषा को अलग कर देता है। तो एक ब्रॉडर विजन के साथ में जब हम अपना कोई व्यवसाय या कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो उद्यमिता की श्रेणी में आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से, जैसे हम फेजेस की बात कर रहे थे कि अभी फेजेस के ऊपर डॉक्टर हनीफ आपसे विस्तार में बात करेंगे कि कैसे एक आइडिया जनरेशन करने की जरूरत है, फिर उस आइडिया को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, फिर उस आइडिया पर प्लान करने की जरूरत है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसके लिए फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की जरूरत है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। उस पूरी प्रोसेस के साथ में हम एक पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, यही उद्यमिता है। और इसके लिए एक ब्रॉडर विजन, एक बड़े विजन के साथ में काम करने की जरूरत है। तो ये मुख्य रूप से उद्यमिता को अगर हम देखें कि उद्यमिता जो है अपने पिछले अनेक सालों में किस तरह से चरणबद्ध रूप से हमारे सामने एक जो ट्रांजिशन हमने देखा है कि किस तरह से हमारे सामने उद्यमिता का विकास होते हुए हमने देखा है। अभी मुख्य रूप से जो चैलेंज है हमारा वो ये है कि इसको कैसे स्प्रेड किया जाए, कैसे इसको इनकलकेट किया जाए। और इसके लिए अगर आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत तरह से बहुत बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। न केवल टीचिंग के करिकुलम में आपने देखा होगा कि इसको शामिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसके लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है कि इसको बहुत बड़े स्तर पर वो आगे ले जा सकें। और हमारा देश, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें बहुत जो छोटे प्रयास हैं उनसे बहुत जल्दी हम इसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए इसको बहुत बड़े स्तर पर कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें टीचिंग के एफर्ट्स भी हैं और ट्रेनिंग के एफर्ट्स भी हैं। सॉरी, 1 मिनट। तो मुख्य रूप से जब अगर हम एफर्ट्स की बात करते हैं तो 3 चीजें हैं जो पिछले कई वर्षों के रिसर्च में भी सामने आई हैं कि उद्यमिता को अगर बढ़ावा देना है, उद्यमिता को अगर आगे ले जाना है, हमारे जो युवा बच्चे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं या इवन शिक्षित रोजगार भी हैं, तो अगर उनको एक सफल उद्यमी बनाना है तो ऐसे क्या हर्डल्स हैं, ऐसे क्या एंट्री बैरियर्स हैं
जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग इस कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते। एक पर्सपेक्टिव मैंने हिस्टोरिकल आपको दिया है कि वर्ण व्यवस्था की वजह से भी बहुत ज्यादा उद्यमिता का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर हम उन लोगों को एक प्लान्ड वे में उनको एड्रेस कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में उद्यमिता का जो स्कोप है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 चीजों का जो 3 चीजें हैं जो ऑब्स्टेकल्स के रूप में मानी जाती हैं, जिससे कि उद्यमिता का विकास उस मात्रा में या उस लेवल पर नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पर हो सकता है। इसमें एक है कि नॉलेज इंक्यूबेशन सिस्टम। अगर आप देखें कि मुख्य रूप से हमारे जो युवा हैं उनके सामने एक प्रश्न बहुत बड़ा होता है कि अगर मैं अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अपना रोजगार करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं क्या करूँ? तो नॉलेज इंक्यूबेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो उसमें न्यू आइडियाज जो हैं उनको जनरेट करने की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल्स जो कि जिससे कि वो ट्रिगर कर सकें, जिससे कि अपने स्टार्टअप को आगे ले जा सकें। तो एक तो नॉलेज, दूसरा ये है कि न्यू आइडियाज, तीसरा ये है कि सॉफ्ट स्किल्स जिससे कि वो अपने आइडियाज को ट्रिगर कर सकें। और एक ओवरऑल अगर हम देखें तो डोमेन स्किल का भी कहीं कहीं पर हमको अभाव दिखता है कि अगर हम कहीं पर कुछ काम करना चाहते हैं, कहीं पर रोजगार करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डोमेन स्किल की जो जरूरत होती है, तो उसकी भी कहीं कहीं पर हमको लगता है कि कमी महसूस होती है। तो इसके लिए भी आप देख रहे हैं कि सरकार पिछले कई सालों से बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है कि जिससे कि न्यू आइडियाज जनरेशन में लोगों को सपोर्ट मिल सके, लोगों को सॉफ्ट स्किल्स या जो भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत है उसके ऊपर उन लोगों को ट्रेंड किया जा सके, उनकी स्किल बिल्डिंग की जा सके। और साथ ही साथ डोमेन स्किल्स के लिए आप देखते हैं कि स्किलिंग के ऊपर सरकार लगभग पिछले 10 सालों से काफी प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों को पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग मिल सके। और इसके बाद जो सेकंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले 70-80 सालों को देखें तो स्वरोजगार से हम लोग उद्यमिता पर आए, और उद्यमिता से अब हम लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अगर हम केवल फंडिंग सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तभी भी बात बनने वाली नहीं है। हमें ट्रेनिंग और फंडिंग सपोर्ट के साथ इंक्यूबेट करने की भी जरूरत है, हमें हैंड होल्ड करने की भी जरूरत है। तो जो भी आइडियाज जनरेट होते हैं, जो भी हमारे जो युवा वर्ग जो उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज जनरेट करते हैं, तो उन आइडियाज को कंसोलिडेट करना, उनको इंक्यूबेट करना, उनको प्रोटोटाइप डेवलप करना, उनको मार्केट के साथ लिंक करना, उनको क्रेडिट के साथ लिंक करना, तो एक पूरा जो बिजनेस का इकोसिस्टम है उस पूरे सिस्टम को डेवलप करना। तो अभी ये महसूस किया जाता है कि केवल आइडियाज जनरेशन या केवल नॉलेज प्रोवाइड करने से भी काम नहीं बनता है, नॉलेज के साथ में उस आइडियाज को इंक्यूबेट करने की भी जरूरत है। तो सेकंड ऑब्स्टिकल जो महसूस किया जाता है नॉलेज के बाद में, वो है इंक्यूबेशन का, जिसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है बैंकिंग या फाइनेंशियल लिंकेजेस का। तो इसको भी आपने देखा है कि कई तरह से एड्रेस किया जा रहा है। टेलर मेड स्कीम्स हैं, कस्टमाइज्ड स्कीम्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें लोगों को क्रेडिट लिंकेजेस दिए जाते हैं। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जहां पर क्रेडिट लिंकेजेस का सपोर्ट है, जहां पर स्किल का सपोर्ट है, जहां पर मार्केटिंग का सपोर्ट है, और जहां पर कई तरह के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो बेसिकली जो 3 एंट्री बैरियर्स थे, नॉलेज, इंक्यूबेशन और फाइनेंशियल्स को लेकर, तो इसके ऊपर भी लगातार सरकारें भी काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग भी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चल रही है। और आप देखेंगे कि ये प्रोसेस और इस प्रक्रिया जितना आगे बढ़ती जा रही है, उतनी अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ती जा रही है। एक आज से कुछ साल पहले भी शायद अपने रोजगार के प्रति या उद्यमिता के प्रति लोगों में
इस तरह का उत्साह दिखता नहीं था जिस तरह का उत्साह अब दिखने लगा है, क्योंकि इस तरह का इंक्यूबेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, इस तरह का नॉलेज सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, और इस तरह की जो क्रेडिट लिंकेजेस की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी करते हैं, उस तरह के भी बहुत सारे सपोर्ट डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से ये उद्यमिता के विभिन्न चरण हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले कई दशकों में या पिछली शताब्दियों में वर्ण व्यवस्था से लेकर स्वरोजगार से लेकर और आज हम उद्यमिता के विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। और मैं एक चीज जरूर और बोलना चाहता हूँ, जितने भी युवा वर्ग इससे जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ये धारणा बहुत पुरानी हो चुकी है कि बिजनेस करना केवल कुछ ही लोगों का काम है। आप सब लोग भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में, प्रॉपर समझ के साथ में आप अपना व्यवसाय, आप अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको करने की आप में ज़ील हो। आपको एक बहुत ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 100% एफर्ट्स या उससे भी ज्यादा अगर आप नहीं लगाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब तक कि ये बिजनेस करने का आइडिया आपका खुद का नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि ये आपको नौकरी नहीं लग रही है इसलिए आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, या किसी ने आपको कहा है कि ये बिजनेस कर लीजिए, तब आप बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप उसमें सफल तभी होंगे जब ये आपका आपका अपना आइडिया हो, आपकी अपनी सोच हो, आपका अपना इनिशिएटिव हो, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से एक बेहतर उद्यमी बन सकते हैं, आप अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। आपको उद्यमी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए, उद्यमी में जो गुण होने चाहिए, उसमें अगर कहीं पर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और डेवलपमेंट की जरूरत है, तो निश्चित रूप से डेवलप किया जा सकता है और आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं डॉक्टर हनीफ मेवाती से अनुरोध करूंगा कि वो इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएं, उद्यमिता के फेजेस पर बात करें, और इसके बाद में हम लोग फिर आपके सेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, जो भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, हम उन लोगों के साथ निश्चित रूप से जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तरुण बेदी सर फॉर सेटिंग अप द कॉन्टेक्स्ट। आज का जो सेशन है उसकी जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है। Sorry for interrupting. Yes, please. Sir, I would like to invite you, sir. But before invite you, I want to share your credentials. Please permit, sir. Please. Sorry, sir. Dr. Mohammad Hanif Mewati, sir. Sir has 23 years experience in the field of entrepreneurship, skill development, and capacity building training. Sir has experience of various projects, some funded by International Labour Organization and Development Department of Labour, USA, and Ministry of Labour and Employment, Government of India. Micro enterprise creation, capacity building of rural, urban, and tribal women groups on income generating activities, institution building, community building, CSR activities are his area of specialization. So, sir, now your turn. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, दीप्ति मैडम। एंड जैसा कि मैं बता रहा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, काफ़ी कुछ किया गया है हमारे देश में इसको आगे बढ़ाने के लिए, और ये सब है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने के लिए। अभी देखिए, जो सेटिंग अप कॉन्टेक्स्ट की बात थी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात थी, या एक थोड़ा सा जो क्रक्स था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बड़े अच्छे से बेदी साहब ने यहाँ बताया है। अब आगे इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक दो पार्टिसिपेंट्स से कुछ क्वेश्चंस आए थे, सो हम कुछ लाइव और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में भी इसमें बात करेंगे। आप पेशेंटली थोड़ा सा हमारे साथ में रहेंगे, तो आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्रिएट ए वेरी गुड इम्पैक्ट। लाइक रादर आपकी जो सोच है अगर करियर के लिए, तो मैं समझता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं, दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में, इस सेशन के बाद में, इस सेशन के दौरान आपकी सोच अपने करियर ऑप्शंस के लिए या करियर एस्पिरेशंस के लिए शायद चेंज होगी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या इसको अपनाने के लिए आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में
जरूर थोड़ा बहुत कुछ चेंज इसमें आपका आ पाएगा। सी, तो आई होप के आप पहली ही स्लाइड से अगर मुझसे सब अच्छे से लाइक थोड़ा सा फोकस होकर अगर आप जुड़ेंगे तो ही एक के बाद एक स्लाइड ये सीधी की सीधी आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जैसे मैंने अब एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की क्यों बात कर रहे हैं हम, देखिए जिंदगी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जिंदगी है तो सब कुछ चलेगा और जिंदगी नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिंदगी के पहले कुछ नहीं चल रहा था और अगर चल रहा था तो जिसका जीवन नहीं था उसके लिए उसका कोई महत्व या औचित्य नहीं है। हमारे लिए किसी भी चीज का महत्व और औचित्य जब तक के लिए है जब तक के जीवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ साइकिल, और उसके बाद में फिर जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की जो साइकिल है या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो एक बार अगर शुरू होती है तो कहाँ खत्म होती है या कभी खत्म नहीं होती है, वो चलती रहती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही लाइक इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि बड़ा ऐसा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक लाइक प्राउड आपको देता है, एक गर्व देता है, आपकी एक नई एक विरासत आपकी खड़ी करता है और बहुत सारी चीजें हैं। उन सब के बारे में हम यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकली और लाइव कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स try to understand the stages of life cycle. This is not the only way to understand the stages of life cycle. This is the way we have developed to understand the life of life cycle to understand entrepreneurial journey. ठीक है, उद्यमी जो जीवन है या उद्यमी जो आपका लाइक जो भी जीवन काल रहेगा उसके हिसाब से जो या करियर आपका जो है करियर के हिसाब से आपकी लाइफ में कैसे चक्र चलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए हम बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता हर चीज खिलाने का पिलाने का, हमको कपड़े पहनाने का, हमारे सर्दी गर्मी बारिश या जो भी प्राकृतिक चीजें हैं जो भी हमारे लिए खतरे हो सकते हैं उन सब से सुरक्षित रखने का हमें कुछ भी नहीं होता है। हम आग का अंगारा भी पकड़ सकते हैं और हम जलते हुए लाइक स्टोव में भी हाथ डाल सकते हैं, लेकिन उस समय हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कुछ हमको दायित्व नहीं होते हैं, बल्कि हम खुद किसी दूसरे का दायित्व होते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही चाइल्डहुड से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी लर्निंग्स जैसे माहौल में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, लाइक अगर व्यवसायिक अगर हमारी फैमिली है, उद्यमी फैमिली है, तो वो चीज़ें हम सीखना चालू कर देते हैं। अगर हम सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं तो हमारा इंक्लिनेशन उधर की तरफ बढ़ता चला जाता है। इफ़ यू बिलोंग्स टू डॉक्टर फैमिली तो फिर वो डॉक्टर बनने की बारे में सोचने लगते हैं। IAS हैं उनके पेरेंट्स तो वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। इंजीनियर हैं तो वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। और बहुत ही अगर डिप्राइव्ड अगर माइग्रेंट लेबर है मान लीजिए, तो आज यहाँ कल वहाँ, मतलब लाइक उनको स्कूल भी होता है, कोई स्कूल में साल भर जाते हैं, फिर एग्जाम्स होते हैं, फिर अगली क्लास में चले जाते हैं, किताबें होती हैं और वहाँ क्या फैसिलिटीज होती हैं उस सब के बारे में भी नहीं मालूम पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ साइकिल वेयर वी लर्न फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, जो भी हमारी बातें होती हैं या जो हमारा फैमिली का बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से। तो फॉर्चुनेटली देखिए आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और जो वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कनेक्ट हैं, यानी कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सबको जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आइदर दे आर आवर पैनलिस्ट्स, ऑर्गेनाइजर्स और स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम किसी ऐसे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी हम ब्लेस्ड हैं, और हम जब ब्लेस्ड हैं तो लाइक हमारी जर्नी जो डिप्राइव्ड ग्रुप होता है उससे कहीं ज़्यादा आगे से शुरू होती है, उससे मीलों आगे से हम अपनी जीवन की यात्रा या हमारे करियर की यात्रा को हम शुरू करते हैं और हम स्टूडेंट बनते हैं। सो हमारे जो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा मुझे मालूम है, आज स्टूडेंट्स हैं। सो नाउ दिस इज द फेज वेयर यू आर लिविंग इन। अभी जब स्टूडेंट के रूप में आप देखते हैं तो स्टूडेंट के रूप में बहुत मर्तबा आप काफ़ी लाइक महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं और अपने जो स्टूडेंट वाली लाइफ होती है उसका एक एक समय का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, करियर के लिए जो भी एस्पिरेशंस हैं उन एस्पिरेशंस के लिए जो भी इंक्लिनेशन है, जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब की तैयारी करके, और अच्छे मार्क्स ही नहीं लाना चाहते हैं आप, बल्कि अपने फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में आप चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट भी हो जाए, आपको बहुत अच्छा या बहुत अच्छे, एक से ज़्यादा आपको अच्छे जॉब ऑफर्स मिल जाए। मेरी बात को समझिएगा, लाइक यू आर ए जॉब seeker as a student, parallelly you are a job seekers. Many of like most of the students
हम अगर उनसे पूछेंगे क्या करियर बनाना चाहते हो, तो वो कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई पोजीशन उनके दिमाग में होती है, वो बताते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं हमारे जीवन में। तो एज ए स्टूडेंट आप देखिए कि क्या आपके करियर एस्पिरेशंस हैं। अगर वो पूरे नहीं कर पाते हैं, आपका फाइनल ईयर हो जाता है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाटएवर जो कुछ भी आप हो जाते हैं, और उसके बाद में आप इंतजार करते हैं उस जॉब को मिलने का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट टाइम कहीं जॉब कर लेंगे, या फैमिली का जो भी बिजनेस है उसमें आप करने लगेंगे। लेकिन आपके जीवन का जो सपना है, आपके जीवन की जो आपकी जो लक्ष्य है करियर के लिए, उसके लिए एक एस्पिरेंट बन के, और बिल्कुल उसमें आपका स्ट्रगल वाला जो पीरियड होता है, या तैयारी वाला जो पीरियड होता है, वो आप शुरू कर देते हैं। तो अभी देखिए आप स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट रहते हुए अच्छे से अगर कोई चीज सोच ली, अच्छे से तैयारी कर ली, पीछे जाते हैं हम, है ना, तो अच्छे से अगर तैयारी कर ली तो आप एक एस्पिरेंट नहीं बनेंगे, सीधे आप अपनी करियर में एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर एक स्टूडेंट रहते हुए आपने तैयारी अगर अच्छे से नहीं की, या आपके एस्पिरेशंस आपने अप्रोप्रिएट नहीं रखे, पोटेंशियल को सही से नहीं समझा, वातावरण को सही से नहीं समझा, पॉलिसीज को सही से नहीं समझा, इमर्जिंग एरियाज को सही से नहीं समझा, तो आपको एस्पिरेंट वाले फेज में आना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। नहीं तो इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू टू अटेंड दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप, दिस टाइप ऑफ टॉक्स। इस तरह के फेटर्निटी के बीच में बैठ के आप अपने एस्पिरेशन वाले करियर को चाहें तो पार्शियल, या चाहें तो फुली आप उसको स्किप कर सकते हैं, एक स्टेज सीधे आगे जा सकते हैं। नहीं तो भी एज एन एस्पिरेंट भी अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, बुराई नहीं है। ज्यादातर परसेंटेज जो होता है वो एस्पिरेंट लोग बनते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट से सीधे करियर में एंट्री हो जाती है। सो लेट्स मूव अहेड। अभी देखिए अगला जो है वो स्ट्रगल वाला। अगर एस्पिरेंट, एज एन एस्पिरेंट अगर हम ज्यादा समय ले लेते हैं, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ व्हाइल यू आर परसुइंग योर करियर। तो एज एन एस्पिरेंट आप देखिए कि अगर ज्यादा समय एस्पिरेंट बन के ले लेंगे आप, तो आपको स्ट्रगल करना वाला फेज में एंट्री करना पड़ेगा, अभी आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। सो व्हाट टू डू फॉर दिस, टू अवॉइड दिस स्ट्रगल? In the phase of your student life you will have to prepare, आपको तैयारी करना पड़ेगी, अपना जो भी करियर है उस करियर के लिए अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, कि या तो आप एस्पिरेंट और स्ट्रगल वाला पीरियड सीधा स्किप कर जाएं, या एस्पिरेंट भी रहें तो कम से कम दिनों रहें, या कम से कम समय में उसमें आप रहें। एक ऑप्टिमम टाइम में आप इस फेज से आगे बढ़ के अपने करियर पाथ की तरफ चल पड़े। सो स्ट्रगल वाला पीरियड, अभी देखिए स्ट्रगल वाला जो पीरियड होता है, अगर ये स्ट्रगल लंबा चला, अगर ये स्ट्रगल लंबा चला, ये हर एक के जीवन में होता है। आइदर यू आर ट्राइंग टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, आइदर you are seeking a job or pursuing to take some competitive exams, that may be UPSC, MPPSC, some government job, some corporate job, कुछ भी प्राइवेट जॉब, या आपके फर्दर स्टडीज के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, अगर लाइक पीजी के लिए सिलेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, टेक्नोलॉजी के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हैं, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर उसमें बैरियर है, कोई मेरिट लिस्ट का उसमें अगर कोई फंडा है, तो फिर आपको ये सब स्टूडेंट लाइफ से ही अपने को तैयारी करना पड़ेगी। अदरवाइज you are going to be stuck in the phase of aspiration or in the phase of struggle. Okay, तो अभी आगे चलते हैं। अगर स्ट्रगल लंबा चला, ये दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। अगर स्ट्रगल आपका ज्यादा लंबा चला तो देखिए फिर आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैरियर तलाशना होगा। अभी कॉम्प्रोमाइजेशन लाइफ के यहां से शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले, फिर मैं वापस जाता रहता हूं बार बार, अभी फिर जाऊंगा, स्टूडेंट लाइफ में अगर तैयारी अच्छे से कर ली, चीजों को अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिकलिटी को अच्छे से समझ लिया कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप समझें कि कितने लोग यूपीएससी में बैठते हैं, उनमें से कितने लोग प्रीलिम्स में निकलते हैं, कितने मेन एग्जाम्स में निकलते हैं, और कितने इंटरव्यू में निकलते हैं। दिन कितने इंटरव्यू में निकलने के बाद में भी वो आईएएस में जो टॉप पोजीशन उसके लिए सिलेक्ट होते हैं, फिर उसमें से भी कितने ऐसे होते हैं, लाइक सपोज आपने बहुत मेहनत करके, और आपने यूपीएससी में आईएएस का भी आपने अपना ले लिया, मेरिट सिक्योर कर लिया, और नॉर्थ ईस्ट में आपकी पोस्टिंग हो गई, आपको अपना मनपसंद कैडर नहीं मिला। जनरली तो आप चाहेंगे कि जहां जिस स्टेट के हैं वही मिल जाए, लेकिन आपको आसपास भी नहीं मिला, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल गया, देन अगेन यू हैव टू बी फिर दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगा कि या तो आप दोबारा से उसमें अपीयर हों, या अपना कुछ करें, मेरिट सुधारें, अगले साल में कुछ करें। एनीवे, तो
मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल अगर ज्यादा लंबा चला तो आपको अपना करियर का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यूपीएससी करने के लिए दे एग्जाम, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स में हो जाता है तो मेन में नहीं हो रहा है, मेन में हो जाता है तो इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, इंटरव्यू में अगर हो जाता है तो आपका लाइक कैडर नहीं मिल रहा है, या मेरिट में नीचे कहीं आ जा रहे हैं, आईएएस नहीं मिल रहा है आपको, कुछ और मिल रहा है, ईआरएस मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, व्हाटएवर, ठीक। तो इसके लिए आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है जो मिल रहा है वही ले लो। या फिर आपको कहेंगे कि अरे स्टेट पीएससी दे देते हैं, अब यूपीएससी तो क्रैक नहीं होगा, आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है डिप्टी कलेक्टर ही बन जाते हैं। या हो सकता है कहेंगे कि अरे मेरा जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और इस सब की बहुत अच्छी तैयारी है, तो मैं क्यों ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई दे देता हूँ, और क्लास 2 की जो पोस्ट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं वो ले लेता हूँ, व्यापम का दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि चलो संविदा टीचर ही बन जाते हैं, फिलहाल तो आजीविका तो चलेगी। उसके बाद में आप देखेंगे एक स्टडी थी, एक न्यूज थी, मैंने पढ़ी थी 1-1.5 साल पहले, कि उत्तर प्रदेश में प्यून की कुछ पोस्ट के लिए, ऑफिस बॉय की कुछ पोस्ट के लिए थाउजेंड्स की संख्या में पीएचडी जो थे उन लोगों ने अप्लाई किया था, लेक्स की संख्या में पीजी लोगों ने अप्लाई किया था वहां पे। तो दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज्ड करियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ फेज में हैं, आगे वाली तीनों स्टेज जैसे जैसे ज्यादा देर करेंगे सही डिसीजन लेने में और डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड करियर आपको चूज करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी होगी, आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड करियर चूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता का एक आईना आपको दिखा रहा हूं कि अभी आप बच्चे नहीं हैं, थोड़े दिन बाद आप स्टूडेंट्स भी नहीं रहेंगे। तो यहीं पे ये समय है सही निर्णय लेने का, सही तैयारी करने का, थोड़ा पेशेंस रखने का, चीजों को पेशेंटली सुनने का, समझने का और उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो जब तक आप सहमत ना हो तब तक बिल्कुल उसको मत अपनाइए, जब तक बिल्कुल आप सहमत नहीं है तब तक आपको नहीं करना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए लाइक करियर ऑप्शन जो कि थोपा जाए किसी के ऊपर, वो तो आपको ऑप्ट करना है। अगर आप ऑप्ट करते हैं, पूरे मन के साथ में इसको अपनाते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी, उद्यमिता भी आपको पूरे मन के साथ अपनाएगी। और अगर आपने खुदा न खास्ता अगर आपने पार्शियली इसको अपनाया तो दैट इज ए वेरी वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। पूरा समझिए, सोचिए, पूरे मन से इसको अपनाइए। सो कॉम्प्रोमाइज करियर से अगर बचना है, आपको जिंदगी में कुछ छोड़ के चले जाना है, कुछ विरासत छोड़ के चले जाना है, कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी बात हो, कुछ हैपनिंग जैसा अगर आपकी जिंदगी में हो, देन द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। देखिए अब यहां भी मैंने सीधा एंटरप्रेन्योरशिप की बात में नहीं कर रहा हूं, आपको एंटरप्रेन्योरियल बनना पड़ेगा, चाहे भले ही आप जॉब सीकर हों। एक जॉब सीकर एंटरप्रेन्योरियल कैसे सोच सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ ये समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। भाई देखिए, आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो आजकल की मॉडर्न जो सिलेक्शन जो स्ट्रेटजी होती हैं, सारी कंपनी, सारे एम्प्लॉयर्स एक ऐसा एम्प्लॉय ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कंपनी में आए, जो फैक्ट्री में आए, शॉप फ्लोर पे आए, या वो जिस भी सेक्शन में काम करे तो इतनी जिम्मेदारी से काम करे जैसे ये खुद का उसका अपना वेंचर है। और इस तरह से काम करने वाले के लिए एक नया टर्म, एक नया डिक्शनरी में शब्द कुछ दिनों से आया है, इंट्राप्रेन्योर। सो इफ यू आर रियली ए जॉब सीकर, यू कैन नॉट थिंक अदर देन ए जॉब। आप जॉब के अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, आपके जो भी नेबर्स हैं, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स और जो भी लव्ड वंस हैं, वो सब लोग आपको अलाउ ही नहीं करते हैं, भाई अच्छी जॉब ढूंढो, कहाँ नौकरी करोगे, धंधा करोगे, कहाँ उद्यमिता के चक्कर में पड़ रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, उस स्थिति में भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के बाद आपके करियर पाथ में बहुत रैपिड ग्रोथ के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो आगे की स्लाइड्स या बातें हम करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योरल फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। आपको दिखाना पड़ेगा अपने व्यवहार में कि आप जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस संस्थान में जाएंगे उसमें इस तरह से काम करेंगे। ये आपका नेचर है कि जैसे वो अपना है। शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल क्वालिटी का, फिनिशिंग का, टाइम का, प्रोडक्टिविटी का और सारी चीज़ों का, स्टैंडर्ड्स का वैसे ही ध्यान रखेंगे कि अगर एक पीस भी खराब हो गया तो ये आपकी अपनी फैक्ट्री है, ये आपकी अपना नुकसान हो जाएगा, व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। उस तरह की इन्वॉल्वमेंट, चाहे एज एन इंजीनियर, चाहे एज ए मैनेजरियल किसी स्टाफ के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो पूरा काम उतनी तन्मयता से, पूरा काम उतनी लगन से आप करेंगे। तो ये जॉब के लिए है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप रियली उद्यमी बनना चाहते हैं, आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं,
तो फिर वो बात ही अलग हो जाएगी। फिर देखिए फिर वो उसका क्या फर्क है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स तो आप जब ही अर्न कर सकते हैं जब आप एंटरप्रेन्योर बनने का निर्णय लें, और दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन दैट व्हिच करियर यू आर गोइंग टू ऑप्ट। दिस इज द राइट टाइम टू सिलेक्ट योर करियर। अभी आप आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, वट एवर यू वांट टू बिकम, जो अभी आपने लिया है डिसीजन, उसी डिसीजन के हिसाब से आपकी भी तैयारी होगी, माइंडसेट होगा आपका, आपके लोगों की आपसे उम्मीदें बनेंगी और आपकी खुद से भी उम्मीदें रहती हैं। और जब वो लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो लोगों का बोलना शुरू होता है, आपकी खुद की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, आपके खुद के अंदर से बोलना शुरू होता है, और वो बोलना शुरू होकर फिर आपको डिप्रेशन में ले जाता है, कॉम्प्रोमाइज करियर की तरफ ले जाता है, लाइक जो लेस प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ ले जाता है। जो आपका टैलेंट है, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, जो आपका लाइफ में जो चार्म है, उस सब से दूर ले जाता है आपको। तो इससे अगर बचना है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक एंटरप्रेन्योरल करियर अपना चुनिए, आइदर ए जॉब सीकर और ए जॉब क्रिएटर। तो लेट्स मूव अहेड, अगली स्लाइड्स पे हम चलते हैं। सी, अभी ये जो लाइफ साइकिल आपने देखा, जो करियर के परव्यू मतलब करियर के उसमें पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया, तो क्राइसिस वर्सेस अपॉर्चुनिटी की हम बात करें। देखिए क्राइसिस वर्सेस अपॉर्चुनिटी की क्यों बात करते हैं, दिस इज द फेज वेयर यू आर अभी आप ये फर्स्ट फेज में ही चल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जर्नी चुनना है आपको, या आपको एक जॉब कहीं ढूंढना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको एक जॉब कहीं पे तलाश करना है और पा लेना है और जिंदगी उसके हिसाब से जीना है। सो आइदर यू वांट टू बिकम ए जॉब सीकर, ओके, इस पर टिक लगा दीजिए, मेरे को तो जॉब ही ढूंढना है, जॉब ही करना है, बाकी आगे की फालतू बातें मुझे नहीं सुननी है। तो अगर आप जॉब सीकर बनना चाहते हैं तो इस प्रेजेंटेशन में, इस वर्कशॉप में आपके लिए वो सब कुछ है जो आपके सिलेक्शन के लिए, आपके करियर पाथ में आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए आपको सहयोग करेगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि अगर आप जॉब सीकर हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के इस वर्कशॉप में आपके लिए क्या है, तब भी इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं जॉब क्रिएटर्स के लिए। आपको किसी के आदेश निर्देशों का पालन करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा पाबंदियां अच्छी नहीं लगती हैं, एक बंधी बंधाई सैलरी, उससे जीवन यापन करने में लगता है कैसे ऐसा मेरे सपने पूरे होंगे, कैसे मैं अच्छी जो जिंदगी मैंने सोची है, अच्छी कार होगी, बंगला होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, नौकर होंगे, लोग मेरे कहने से काम करेंगे, और मैं जब चाहूंगा जब मैं ऑफिस जाऊंगा, जब चाहूंगा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर से काम करूंगा, जिस दिन चाहूंगा छुट्टी रखूंगा, जिसको चाहूंगा जॉब दे दूंगा, और बाकी तमाम चीजें मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा व्यापार मेरे पूरे शहर में होगा, मेरे पूरे जिले में होगा, लाइक पूरे प्रदेश में होगा, अरे प्रदेश से बाहर पूरे मेरे देश में होगा, इतने देशों में होगा, 100 देशों में होगा, इतने देशों में होगा, इतने प्रोडक्ट में डील करूंगा, इतना बड़ा एम्पायर होगा, वगैरह वगैरह। अगर मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, अभी देखिए गुलाटी जी का एक एग्जांपल देता हूं, एमडीएच मसाले वाले जो दद्दा जी जो थे, अगर आपने देखा होगा, अच्छे से उनकी आवाज भी नहीं आती थी, इतनी एज थी, इतनी एज में भी वो अपने प्रोडक्ट की, एमडीएच मसाले की मॉडलिंग के लिए खुद अपने आप को चूज करते थे और बताते थे। एक एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, उनकी ग्रेडिंग है, क्लीनिंग है, उनकी ग्राइंडिंग है, उनकी पैकेजिंग है, और वो सारी चीजों में, हर चीज में इन्वॉल्व होते थे, हर चीज में इन्वॉल्व होते, तभी तो एक छोटे से मसाले के बिजनेस से एमडीएच एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। तो वो रिटायर नहीं हुए, आखिरी दिन तक भी अपना काम करते रहे, कंट्रीब्यूट करते रहे। अगर वो जाके फैक्ट्री में, शॉप फ्लोर पे या अपने ऑफिस में काम नहीं करते थे, तो घर से या अस्पताल से भी वो बताते थे, सब चीजों की खबर लेते थे। लाइक ए जॉब क्रिएटर कभी वो रिटायर नहीं होता है। अगर आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि आप एक समय के बाद 60 साल, 62 साल, 65 साल के बाद में आप रिटायर्ड हो जाएं, तो जॉब सीकर ठीक है आपके लिए, लेकिन जॉब क्रिएटर कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है। वो जब चाहे जब रिटायर्ड, और जब चाहे जब वो काम कर सकता है। ठीक है, लोग उसके लिए काम करते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। लाइक अगर आप बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, आप बहुत लाइक धनी वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि मैं तो लाइक लोगों के भले के लिए, चैरिटी के लिए काम करूंगा, और वो काम करने के लिए मेरे माता पिता की जो अच्छी मेहनत से कमाई हुई जो पैसा है, उस पैसे में से मैं लगाना नहीं चाहता हूँ, उस पैसे में से मुझे लगाना ना पड़े, लेकिन मैं तो लाइक बहुत आप सॉफ्ट टाइप या ऐसा कुछ आप सोचते हैं, ज्यादा आप लाइक डिप्राइव्ड ग्रुप्स के या जो जरूरतमंद है उनके लिए काम करना चाहते हैं, आइदर दैट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सम वैल्यू सर्विसेज या सम अच्छे प्रोडक्ट्स या कुछ और दूसरी तरह की चीजें। तो आप
मिनिमम जो आपका व्यवसाय चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जितना मिनिमम मार्जिन की जरूरत है उतना मार्जिन लेके इस तरह के वेंचर भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। 10-20 साल ये वाला काम करने के बाद में कोई बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आपको हो सकता है कि राज्यसभा का सदस्य बना दे, आपके अच्छे समाज सेवा के कार्य के लिए, आपकी अच्छी नामी जो सोशल एंटरप्राइज जो आपने क्रिएट की हुई होगी, जिसको आगे तक ले गए होंगे, जिससे हजारों या लाखों लोगों को आपने फायदा पहुंचाया होगा वगैरह वगैरह। आप समझते हैं, देखिए मैंने बात बता दी। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वहां जाके अपने दूसरे तरह के एस्पिरेशंस को आप पूरा कर सकते हैं, अच्छी राजनीति कर सकते हैं, अच्छे लोगों के काम में आ सकते हैं और अच्छे रुतबे को आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक इंट्राप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। जॉब सीकर बनने के बाद में एक इंट्राप्रेन्योर बन सकते हैं कि मेरे को तो जॉब ही करना है। फिर ये सब सोचा समझा, मैंने तोला मोला, लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आया नहीं नहीं नहीं, ये इतना झंझट वाला काम है, मुझे तो भाई जॉब मिल जाए एक अच्छा खासा, यही सोच के घूम के वो लौट के बुद्धू घर को आए, वैसी कहावत कभी कभी होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि बाय बिकमिंग एन इंट्राप्रेन्योर यू कैन अचीव सम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स आपके क्या होंगे वो आप थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए। अभी इसको समझने के बाद में देखिए, मैं फिर से पहली वाली उसमें ले जा रहा हूं आपको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योरियल, ये आपको क्या देंगे। लेट मी पुट सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कि हमारा एक स्टूडेंट एस्पिरेंट वो तैयारी करता है यूपीएससी क्रैक करने की, जॉब को एक एग्जांपल लेते हैं, और यूपीएससी क्रैक करने की अगर वो तैयारी करता है और उसको लगता है कि यूपीएससी तो बहुत कठिन है, एक दो बार अपीयर होने के बाद में समझ में आता है, तो जब तक होगा ये दोबारा और तैयारी करना पड़ेगी, मैं एमपीपीएससी दे देता हूँ, और उसका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उसने तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी की है। अभी सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और मेरे को जवाब भी दीजिएगा अगर किसी के पास में जवाब हो तो। ये मेरा चैलेंज है कि आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा, बोलने से पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब कभी कोई चैलेंज करे ना तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। अभी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब बिल्कुल एकदम ज्यादा कॉन्शियस हो गए होंगे, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी करते करते आपके दिमाग में आया, वैकेंसी निकली, एमपीपीएससी का भी आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया एमपीपीएससी में, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना नहीं छोड़ा और वो परीक्षा भी देते रहे और अगले साल उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया। अभी आप आईएएस बन गए, आपका एक छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो भी एक करियर एस्पिरेंट है, वो भी इसी दिशा में काम कर रही है या कर रहा है, या मित्र है बहुत अच्छा, या कोई व्हाटएवर, मौसा का लड़का है, मौसी का लड़का है, फूफा का लड़का है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्ते होते हैं भारत में, ये बड़ी सुंदरता है हमारे देश की। तो वो जो कोई भी आपका प्रिय पात्र है, आप मुझे ये बताइए, मेरा प्रश्न ये है कि आपका यूपीएससी में आईएएस पद के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो क्या वो एमपीपीएससी वाली जो पोस्ट है, जो डिप्टी कलेक्टर वाली, वो गिफ्ट कर सकते हैं आप उसको, अपने प्रिय पात्र को, अपने मित्र को? मैं कहता हूं नहीं कर सकते। आप मत जवाब दीजिए, मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूं, नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन एट ऑल, देयर इज नो प्रोविजन एट ऑल टू गिफ्ट एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। इवन कॉर्पोरेट में भी अगर आप काम करते हैं, आप किसी भी पोस्ट में हैं और आपको बड़ी जब पोस्ट मिल जाती है या कोई बड़ा अवसर मिल जाता है, आप अपनी छोड़ने वाली पोस्ट को किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली वेन एवर यू विल बी रिटायर्ड, जब आप रिटायर्ड होंगे, आप सुपरएनुएटेड होंगे, तब भी आप उस जॉब को विरासत में अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। लेकिन एज एन स्टूडेंट, एस्पिरेंट बनने से पहले अगर अच्छा कोई इनोवेटिव आइडिया लेके, पॉलिसीज के साथ में थोड़ा सा कोप अप करके, फंडिंग के साथ में जो स्कीम्स हैं उनके साथ कोप अप करके, चीजों को समझ के, अगर आपने कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरल आइडिया अगर जनरेट किया और उससे एक माइक्रो एंटरप्राइज क्रिएट की, उसको चलाया और अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये सपना बना के रखा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, और वो छोटा सा जो भी इनोवेटिव आइडिया के साथ आपने एंटरप्राइज क्रिएट की है, वो अगर चल पड़ी, अच्छे से चल पड़ी, उसमें आपका मन लग गया, तो जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे लगातार। जितनी मेहनत करेंगे, उतना स्प्रेड करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मन नहीं लगा, मन वहीं लगा रहा, यूपीएससी को क्रैक करने में, जॉब में ही मन लगा रहा, या कॉर्पोरेट लाइफ में जी के वहां नौकरी करके उसको काम करने का, एंजॉय करने का मन लगा रहा, आपको भविष्य में अगर सफलता मिलती है, यूपीएससी में आप पास हो गए या सिलेक्ट हो गए या कॉर्पोरेट में कहीं अच्छा जॉब मिल गया, तो मित्रों मैं बता रहा हूं कि वो छोटी एंटरप्राइज या बड़ी या मिड साइज की जो कुछ भी हो गई होगी जो आपने शुरू की है, उसको जिसको चाहे गिफ्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे गिफ्ट कर सकते हैं। अपने भाई को, बहन को, इवन माता पिता को, कोई मैनेजर रख के कह सकते हैं इसको चलाओ, तुम्हें हम इतनी सैलरी देंगे, इसको चलाओ।
इवन पार्ट टाइम भी उसके बारे में आप सोच सकते हैं, ऑफिशियली नहीं, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद में आप थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आइडियाज से, अपनी जो भी मैनेजरियल कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज हैं वो सारी चीजों को उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको जिसको चाहें उसको गिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा मैंने कहा कि वो गुलाटी जी जो थे एमडीएच मसाले वाले रिटायर्ड नहीं हुए, लेकिन जीवन तो एक ना एक दिन आपको रिटायर्ड कर देगा फोर्सफुली। वो एक सर्टेनिटी है कि लाइफ के बाद में आपको डेथ भी आनी ही है। तो अभी गुलाटी जी ने अपने आप को रिटायर्ड नहीं किया, लगातार काम करते रहे, लेकिन उनका जीवन समाप्त हो गया, उनका बिजनेस समाप्त नहीं हुआ। उनके जो भी वंशज होंगे, जिस किसी को भी जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी पूरा मैनेजर स्टाफ होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते होंगे, मार्केटिंग का काम करते होंगे, प्रोक्यूरमेंट का काम करते होंगे, उनमें से किसी का भी रोजगार नहीं गया, उनमें से किसी का भी करियर समाप्त नहीं हुआ, उनमें से किसी का भी जीवन चलता रहेगा, पहले की तरह नॉर्मल चलता रहेगा, वो व्यवसाय भी पहले की तरह नॉर्मल चलता रहेगा, और एमडीएच मसाले के कंज्यूमर्स पहले की तरह उनको कंज्यूम करते रहेंगे, परचेज करते रहेंगे, रिकरिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वो जनरेट होती रहेगी। और गुलाटी जी के विजन को लेके अगर जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो आगे चलेगा तो वो बिजनेस उसी तेजी से आगे भी बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है गुलाटी जी नहीं है तो उनका बिजनेस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत एमडीएच मसाले की गर्व करने के लिए उनकी अगली पीढ़ी के लिए वो छोड़ के चले गए। तो अगर आप जॉब सीकर बनते हैं, हो सकता है आपको कोई एक अच्छा अवार्ड मिल जाए, बहुत सारे अवार्ड मिल जाएं, आपके कार्यकाल के लिए आपको अच्छा जाना जाए, आपकी सुपर एन्युटी का जो दिन होगा उस दिन आपको अच्छी माला पहनाएंगे, घर तक छोड़ के जाएंगे, आपके अच्छे कामों की, अचीवमेंट्स की, आपकी एक्सीलेंस की, सबकी तारीफ करेंगे, और वो सारी चीजें उसी दिन खत्म हो जाएंगी। आप वो सब किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ किस्से रह जाएंगे, वो सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। टेंजिबल वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, टेंजिबल वहां पे किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके पास में आपके अनुभव होंगे, और उन अनुभवों को सामान्यतः कि ये रिटायर्ड आदमी है, इसकी बात से इससे क्या बात करना, ये किसी काम का नहीं है। हमारे समाज में ये सारी चीजें भी होती हैं। तो देखिए कि ये फर्क है बिकमिंग एंटरप्रेन्योर और बिकमिंग ए जॉब सीकर। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सबसे आखिरी में ये बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फेजेस की तरफ आगे बढ़ूंगा, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का निर्णय लेते हैं, देखिए इतना सारा सोशल मीडिया पे हम डेली हमारे देश के हित के बारे में, हमारे समाज के हित के बारे में, हमारे करियर्स के लिए और सारी चीजों के लिए हमारी थॉट्स को हम वहां पे शेयर करते हैं, शेयर करके गौरवान्वित भी महसूस होते हैं, डिबेट भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। Why don't you support your country to become an entrepreneur? Why don't you try to think to create some jobs for your country? आप अपने देश के लिए कुछ जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट करके उसकी मदद करते हैं, क्यों नहीं सहयोग करते हैं उसका? दिस इज आल्सो ए वे। ये भी एक तरीका हो सकता है एक अपने आप को देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कि अपने आप को ही रोजगार से लगा लें, सेल्फ एम्प्लॉयड कर लें, देश का एक बेरोजगार कम हो जाएगा। अभी आपका छोटा सा भी वेंचर है, उसका ताला खोलने के लिए उसके लिए एक ऑफिस बॉय भी अगर आप लगाएंगे, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आप उसमें जनरेट करेंगे। लेकिन आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, आपका विजन काफी ब्रॉड होगा, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, उनको इंक्यूबेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए इतनी सारी अच्छी टीम है आपके पास में RNTU में। तो ये सबके सहयोग से आप बड़ी चीज कर सकते हैं, बड़ी चीज सोच सकते हैं, जहां हो सकता है 5-10 लोगों को, 20 लोगों को या सैकड़ों हजारों लोगों को आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये एक तरीका हुआ ना खुद के ऊपर गौरवान्वित होने का, ये एक तरीका हुआ ना हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का। सो दिस इज आल्सो ए वे ऑफ थिंकिंग के व्हाई यू शुड थिंक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई यू शुड थिंक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो जॉब सीकर बनना हम बहुत इंकरेज नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कीजिए। शासकीय पॉलिसीज जो भी हैं वो आपके साथ में हैं, वातावरण बहुत अनुकूल है, मेंटरिंग के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए है, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि आप बाहर से बाहर भी जाते हैं तो आप जाके वहाँ जाने आने का हवाई जहाज का किराया, वहाँ पे स्टॉल, वहाँ रुकने का, वो सारी चीज़ों को अलग अलग स्कीम में अलग अलग पात्रता के हिसाब से आपको सरकार उसके खर्चे भी देती है कि आप विदेश जाइए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कीजिए। MSME की पॉलिसीज हैं बहुत सारी। आप खुद अगर किसी एक विशेष व्यवसाय को करते हैं तो आप क्लस्टर डेवलपमेंट की जो सपोर्ट जो स्कीम्स हैं उसमें 90% तक आपको सरकार सपोर्ट करती है, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स वगैरह उन सब चीज़ों के लिए। ओनली 10% वो भी आप अपनी मार्जिन लगा के और कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए तक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSME में 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन आप अच्छा अगर आपका आइडिया है, बैंकेबल आइडिया आपका है, उसमें आप ले सकते हैं।
एमएसएमई के लिए सर्टेन लाइक एससी एसटी के अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो 4% तो जो सरकारी खरीद है उसमें आपके लिए रिजर्व है, 4% आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो एससी या एसटी के जो एंटरप्रेन्योर हैं कैटेगरी के, उन्हीं से लेना है सरकार। मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, मार्केटिंग के लिए ओपन मार्केट है। तो देखिए अभी आगे हम और चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे ये बहुत आसान है, कैसे जितना मुश्किल लगता है उतना ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी को लाइक संघर्षमय बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद में आपके नाम के साथ में ख़त्म हो जाना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के बाद में भी जीवित रहना चाहते हैं, एक एंटरप्राइज या एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर या एक एंटरप्रेन्योरल एम्पायर आपने जो खड़ा किया होगा, उस विरासत के साथ में आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपके जो वंशज हैं, वो आपके ऊपर गर्व महसूस करें, आपका देश आपके ऊपर गर्व महसूस करे, और हम जैसे लोगों को भी लगे कि लाइक हमने अगर बात की थी इनसे 40-50 मिनट तो उसमें से कुछ निकल के आया। अगर एक भी निकल के आता है इसमें से तो हम समझते हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा सम्मान किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ कम टू द फेजेस ऑफ द करियर और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। आप देखें यहाँ पे कि ये जो फेजेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए आप। फेजेस ऑफ द करियर, हम करियर की बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कितनी भी उनसे हम बात करते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में जॉब इस तरह से लाइक घुसा हुआ होता है कि उसको नहीं निकाला जा सकता है। कोई बात नहीं है, अगर सभी जॉब नहीं करेंगे तो फिर एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, उनको लाइक वो किससे काम करवाएंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर इतना गहरी पेट अगर जॉब आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल उसी दिशा में सोचिए, फिर अपने आप को जबरदस्ती इधर की तरफ खींचने का नहीं है। तो इक्वली दिस प्रेजेंटेशन इज, मैं पहले कह चुका हूं, इंपॉर्टेंट फॉर जॉब सीकर्स एज वेल। तो अभी देखिए सबसे पहले नाउ दिस इज द टाइम टू मेक ए डिसीजन। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सबसे पहला फेज है आपका कि आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, आपको कोई प्रोफेशनल बनना है, या आपको कोई दूसरे एरिया में जाना है, ठीक है ना। यू हैव टू बिकम ए जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर, या प्रोफेशनल बनना है, क्या बनना है। सो दिस इज द टाइम टू टेक ए डिसीजन। अभी ऐसे कर लीजिए कि आप डिसीजन ले लीजिए कि ये तो करना ही नहीं है और ये ही करना है, तो जो भी कुछ करना है वो डिसीजन ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने के लिए बहुत इंकरेज नहीं करूंगा, वो मेरी पहली, दूसरी, तीसरी स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। अभी जो कुछ भी इतना सुनने के बाद में भी आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन आप लीजिए, और जो डिसीजन आपका है वही डिसीजन में आप सफल हो पाएंगे। हमारे अच्छी बातें करने से, इंकरेज करने से, मोटिवेशनल स्पीच से, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, कोई उद्यम सफल नहीं होने वाला है, वो आपके करने से होगा। आप मोटिवेट हो सकते हैं फॉर द मोमेंट, लेकिन वो परमानेंटली काम नहीं करता है। तो आप देख लीजिए, एक डिसीजन ठंडे दिल से, दिमाग से, घर में सोच के, बात करके, जिससे भी आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अपने फैकल्टीज से, मेंटोर से, उनसे बात कीजिए और एक डिसीजन लीजिए आप। अभी नाउ दिस इज द लाइक फेज 2। वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन कि मेरे को ये करना है, देन यू हैव टू प्लान माइन्यूटली, appropriately, logically the timelines for what? Timelines of WH. What is this W? अब ये WH क्या है? Why, what, when, where and how. This is the WH. Either you are going to opt a career as a job, either you are going to opt a career in the field of entrepreneurship. तो अभी आपको अपनी टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा WH के साथ। क्यों करने का है? मैंने इतनी सारी बातें की, उसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है कि भाई देश के लिए अच्छा है, नौकरी तो मिलती नहीं है, एक अनार 100 बीमार जो कहावत है हमारी, तो वो सारी चीजें हैं कि नौकरी में बहुत कंपटीशन है। ऐसा ना हो कि मैं एस्पिरेंट बनते बनते स्ट्रगलिंग वाले फेज में चला जाऊं और कॉम्प्रोमाइज करियर अपनाना पड़े, तो इसलिए मैं तो नहीं करूंगा नौकरी। और जो कुछ भी आपका डिसीजन हो, या आपके घर में पहले से व्यवसाय होता है, आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, या कुछ और, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने दिमाग के हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि ये जो हमारा आज की वर्कशॉप का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमको चलना है। आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम बाद में जरूर ले लेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी किया है किसी पार्टिसिपेंट ने, तो उस क्वेश्चन को भी हम बाद में ले लेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम रिप्लाई करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो नाउ कंटिन्यू ऑन WH। WH की हम बात करें तो क्या करना है, कब करना है,
कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। लाइक क्यों मुझे एंटरप्रेन्योरशिप अपनाना है या क्यों मुझे जॉब में जाना है, उसका एक अच्छा रीज़न होना चाहिए लॉजिकल आपके दिमाग में, उसके कारण होना चाहिए। फिर क्या जॉब करना है ये तो आप देखेंगे ना भाई, जॉब करना है तो साइंटिस्ट बनेंगे, आप कोई प्रोफेशनल बनेंगे, कुछ और बनेंगे, कहीं और जॉब करेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या बनना चाहते हैं, कब तक बन जाएंगे, वेन, लाइक दिस इज द दिस कैन बी द ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आपका शॉर्ट टर्म गोल जिंदगी में होना जरूरी है। लाइक आफ्टर 2-3 इयर्स आप कहाँ पे होंगे, लाइक जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो कब बन जाएंगे, ये आपके पास में जवाब होना चाहिए। वेयर, वेयर में लाइक देखिए, ये डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में अप्लाई कर रहे हैं या कुछ और, ये नौकरी से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो उसकी बात है। कहाँ एग्जाम होगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कब अप्लाई करना पड़ेगा, वो पूरी प्रोसेस जो भी है कि आप वैकेंसी निकलेगी, फिर अप्लाई करेंगे, फिर आप रिटर्न एग्जाम देंगे, फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए तो वहाँ जाएंगे, फिर देन वेरिफिकेशन होगा, देन ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन होगा, जो भी होगा, फिर आप जॉब ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस। अब हाउ, कैसे करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बाय पोस्ट करना पड़ेगा, आवेदन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों करना है, पहले जवाब मिल गया। फिर क्यों करना है तो क्या करना है, लाइक इट वुड बी एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोड्यूसर्स प्रोसेसिंग यूनिट, या ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, या ये सर्विस इंडस्ट्री होगी क्या, या ये आईटी बेस्ड कुछ होगा, एजुकेशन बेस्ड कुछ होगा, एग्रो बेस्ड कुछ होगा, हार्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ होगा, ये हमारे लोकल लाइक ये अर्बन टारगेट ग्रुप हमारा कंज्यूमर इसमें होगा, रूरल होगा, दोनों होगा, क्या होगा, क्या करना क्या है, कब करना है, तो फिर उसकी आपको एक प्लानिंग बनाना होगी WH की, कि कब तक आप इसका PPR या DPR बना लेंगे, कब इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी कर लेंगे, कब तक कोटेशन बुला लेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी को कैसे कब तक समझ लेंगे, कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो कैसे लेंगे, कब तक ले लेंगे, कब आपको बैंक में अगर फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो कर देंगे, वाट में आएगा किस स्कीम में कर देंगे, वेन में आएगा कब कर देंगे, है ना, हाउ में आएगा कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देन इन सब चीजों में वो भी सब शामिल है कि आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कितनी कैपेसिटी प्रोडक्शन की आपकी होगी, कैसी आपकी पैकेजिंग होगी, क्या आपकी कॉस्ट होगी, क्या आपका सेल्स प्राइस होगा, क्या आपका मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, क्या आपका सपोर्ट सर्विसेज यानी आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपके प्रोडक्ट में या कुछ में लगती हैं उसका क्या होगा, कितनी बड़ी टीम होगी, कितने उसके रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें लगेगा, कितना पैसा आपको कहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, मंथली एक्सपेंसेस क्या होगा, एनुअल एक्सपेंसेस क्या होगा, कितने साल में रिपेमेंट हो जाएगा, कितने साल बाद आप या कितने समय में आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि इतना बेचने लगे, इतना बनाने लगे कि कम से कम नुकसान ना हो, फायदा हो जाए, बैंक का किस्त भी दे दें, घर भी चल जाए, हमारे कर्मचारियों की सैलरी भी दे दें, बिजली का बिल भी दे दें, पानी का बिल भी दे दें, और सारी चीजें वर्किंग कैपिटल साइकिल भी स्मूथली चलता रहे। तो ये सारी चीजें, ये देखिए अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जितनी भी चीजें मैंने बोली दिस कैन नॉट बी कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में नहीं होता है ये कवर। अगर ब्रेक इवन एनालिसिस ही मैं आपको बताने लगूंगा तो उसी के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, उसी के लिए 1 घंटा चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है कुछ भी लाइक ऐसे। तो ये WH टाइमलाइंस के लिए आपको काफी रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, काफी सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग की जरूरत हो तो ट्रेनिंग की जरूरत लेना पड़ेगी। फॉर्चुनेटली आपके पास में जो आपका IIC है वो आपके पास में रेडिली अवेलेबल एक फोरम है जो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको देता है। तो उसका फायदा उठाइए अगर आपका ये डिसीजन है तो उससे जुड़िए, उनसे जाके बात कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि फेज जो आगे है तो क्या है। देखिए फेज 3 जो है इम्प्लीमेंटेशन एंड मीटिंग टाइमलाइंस एज पर प्लान ऑफ योर WH। अभी देखिए, अभी आपने जो भी प्लानिंग बना ली, अब एक थे मतलब वो जो शेख चिल्ली वाली एक कहावत है कि प्लान बड़ा बड़ा किया। एक अगर आपने कहानी सुनी होगी शेख चिल्ली वाली, तो उसने एक कंटेनर, अपना जो तेल का कंटेनर है उसको उसने जो एक सेठ जी थे उन्होंने बाजार से खरीदा था, उसके अपने सर पे रख के उनके सेठ जी के घर तक पहुंचाने के बारे में उसने 10 रुपए में तय किया मजदूरी और लेके चल पड़ा और सोचने लगा। सोचते सोचते, वो कहानी सुनी होगी आपने, शॉर्ट में बताता हूँ।
सोचते सोचते सोच रहा है ये 10 रुपए जो मिलेंगे तो मैं बाजार में आऊंगा और इन 10 रुपए के अमरूद खरीदूंगा और वो अमरूद में 50% प्रॉफिट पे बेच दूंगा, 15 रुपए मेरे पास हो जाएंगे, फिर मैं अमरूद खरीदूंगा, इसी तरह से अमरूद खरीदता रहूंगा, फिर ये करूंगा। उसी सोच विचार में उसकी अच्छी सुंदर पत्नी से एक शादी भी हो जाती है लड़की से, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, और वो सारी चीजें सोचते सोचते कि मैं जब वो सोचता है उसके बच्चे हो जाते हैं और मैं घर पे जाऊंगा सेठ जी की तरह, तो पत्नी किसी बात पे से बच्चों को मार रही है, बच्चा रो रहा है तो मैं पत्नी का सर फोड़ूंगा। और वो उसी स्टेज पे सोचते हुए वो सेठ जी के घर वो जो तेल का कंटेनर लेके पहुंचने से पहले ही वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है और गुस्से में वो तेल के कंटेनर को वो जमीन पे मार देता है, उसकी वाइफ के सर के ऊपर मार रहा है, जैसे वो तेल का कंटेनर भी गिर जाता है और सेठ जी माथे आ जाते हैं, जो एक अलग बात है। एनीवे, तो इस तरह से अगर हमने प्लानिंग की और WH के बारे में बात की लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग के हिसाब से नहीं किया तो काम नहीं होने वाला है। वैसे ही होगा जो शेख चिल्ली वाली मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई। So we have to meet all the timelines what we have decided on the basis of our factual research and discussions, और जो भी deliberations हैं आपके जो भी mentors हैं उनके आधार पे आपने जो ये बनाया है इसकी टाइमलाइंस के हिसाब से बिना कोताही किए, बिना लापरवाही किए, बिना आलस किए, बिना समय गंवाए आपको सारे WH को उसी हिसाब से जैसा आपने प्लान किया है आपको इंप्लीमेंट करना है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर वेंचर। अभी इंप्लीमेंट कर दिया, अभी आपका वेंचर क्रिएट हो गया। तो नाउ 4 फेज में जो फेज 4 है उसमें आपको अपना जो भी प्लान या इंप्लीमेंटेशन है उसके रिजल्ट्स को रिचेक करना है। उसमें कहीं गलतियां, खामियां या कुछ सुधार की गुंजाइश आपको लगती है तो उसको आपको रीप्लान करना है। अगर सब कुछ भी अच्छे से चल रहा है देन यू विल हैव टू सेट न्यू टारगेट्स, न्यूअर हाइट्स, न्यूअर गोल्स, न्यूअर अचीवमेंट्स। तो आप वो क्या होगा, वो वही होगा कि स्थानीय स्तर से आप जिला स्तर तक पहुंचे और प्रदेश स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और जो इंटरनेशनल बिजनेस की मैंने बात कही थी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी। ये फेज 4 जो है, ये फेज 4 में आज टाटा की बात करें, हम अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, हम किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की बात करें, दे आर लिविंग इन दिस फेज 4। दे आर रीचेकिंग देयर प्लान्स, डाइवर्सिंग प्लान्स, एक्सपांशन प्लान्स, इनोवेशन, नए एरियाज में एंटर करना है, नए बिजनेस में जाना है, नई जियोग्राफी को टच करना है, नई कंट्री में लॉन्च करना है, नए साइज में, नए प्राइस में, नई चीजों के साथ में। तो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। ये चौथा लगातार चलता रहेगा, एक एंटरप्रेन्योर ये चौथे को लगातार करता रहता है। एनीवे, नाउ देयर आर सो मेनी सिचुएशनल फैक्टर्स। देखिए अभी अब होता क्या है कि हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे यूथ आज तक जो भी आते हैं हमारे पास, जब बात करते हैं तो वो बताते हैं साहब सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही, कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही, मार्केट की हालत ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो एक बड़ा रिस्क वाला मामला है। देखिए रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, नो पेन नो गेन वाली बात है, नो रिस्क नो प्रॉफिट वाली बात है, बट दैट रिस्क कैसा हो वो थोड़ा कैलकुलेटिव होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए रिस्क। ठीक वैसे ही कैलकुलेटिव होना चाहिए कि जब एक सार्वजनिक स्थल पे किसी बात से, अगर किसी अच्छे पहलवान जैसे किसी मस्कुलर व्यक्ति से आपकी कुछ हो जाती है बात, तो उससे आप बहस नहीं करते हैं कि भाई ये थोड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी है और हमारा जो बहस करना है वो हमको भारी पड़ सकता है। वहां भी आप कैलकुलेटिव रिस्क, मतलब ये नेचर है हमारा कि हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे वो सामाजिक पहलू हो चाहे आर्थिक पहलू हो। सो नाउ दीज आर द few crucial 2-3 situational factors which I am going to share with you, के जिनको थोड़ा समझ सकते हैं और उनको कभी कभी हम समझते हैं। जो क्राइसिस की मैंने बात करी थी, क्राइसिस वर्सेस अपॉर्चुनिटी, जो हमको क्राइसिस लगता है मित्रों वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सो आइदर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज स्टिल नॉट इन एग्जिस्टेंस। तब ऐसा लगता है ये तो चीज चलती नहीं है साहब, यहाँ पे ये तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा, ये किसी स्टोर पे नहीं मिलेगा, कोई नहीं खरीदता, इसकी डिमांड ही नहीं है यहाँ पे। शायद डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है। लेट मी शेयर ए स्मॉल स्टोरी विद यू हियर कि एक बार आपने सुनी होगी शायद वो, एक बार एक शू मेकिंग कंपनी ने अपने मार्केट रिसर्च के लिए एक रिसर्चर को भेजा अफ्रीकन कंट्री में, रिमोटेस्ट एरिया में कहीं, कि जाके वहां देख के आओ कि हमारा ये शू जो है, ये शू का मार्केट वहां कैसा है, हम अगर वहां लॉन्चिंग करें, वो बड़ी कंट्री है, अच्छी पॉपुलेशन है और सुना है वहां के लोग वहां काफी हो सकता है।
वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और वो वहाँ काफ़ी पोटेंशियल है। ये जाता है जो रिसर्चर वहाँ जाके अफ्रीकन कंट्री में, वो देखता है यहाँ तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, कोई भी जूता नहीं पहनता है, उस आधार पे रिपोर्ट बनाता है भाई वहाँ तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, ये बकवास आइडिया है, वहाँ अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कोई नहीं खरीदेगा उसको, वहाँ कोई यूज़ नहीं करता है इस प्रोडक्ट को। तो वो रिजेक्ट कर देता है उस आइडिया को कि वहाँ उस कंट्री में शू की लॉन्चिंग हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ए वेरी फिजिबल आइडिया। कंपनी का जो ऑनर होता है वो काफ़ी लाइक थॉट प्रोसेस से लाइक वो काफ़ी इंटेलेक्ट होता है, तो वो दूसरे रिसर्चर को भेजता है कि भाई आप और एक बार देख के आओ, वैलिडेट करो कि ये जो रिसर्चर नंबर 1 है इन्होंने जो अपना रिपोर्ट सबमिट की है कि ये फिजिबल आइडिया नहीं है, वहाँ लॉन्च नहीं कर सकते, नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। रिसर्चर नंबर 2 जाता है, उसका विजन अलग होता है, वो देखता है यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता और वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि यहाँ तो कोई भी जूते नहीं पहनता, वो जानते ही नहीं अच्छी क्वालिटी के जूते बुरी क्वालिटी के जूते क्या होते हैं। अगर हम कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी या लेस प्राइस के साथ में, लेस कॉस्ट इम्प्लीकेशंस के साथ में भी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो खूब चलेगा। एक बार सैंपल के रूप में, अगर टेस्ट करने के रूप में भी अगर खरीद लिया लोगों ने, तो ही हमारा करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जब तक कोई दूसरा करे उससे पहले हमको तुरंत लॉन्च कर देना चाहिए इसको। सो दिस इज द एप्टीट्यूड, लाइक दिस इज द थिंग बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड के अगर प्रोडक्ट है ही नहीं तो आप ये कर सकते हैं। अभी गुटखा बैन लग गया है, लेकिन आप देखेंगे गुटखा मिल जाता है, पाउच वाला जो होता है जिसको खाते हैं। कैन यू इमेजिन, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ लोग हम हैं, एक गुटखा कंपनी अगर गुटखा लॉन्च करती है और अच्छे से अगर मार्केटिंग अपनी कर लेती है, ठीक ठाक मार्केटिंग अगर अपनी कर लेती है और 2 रुपए भी उस गुटखे का प्राइस रखती है शुरू में लॉन्चिंग के समय, और सिर्फ हमारे देश के 1% लोग भी ये सोच के एक बार उसको खा लें कि देखें तो टेस्ट तो करें, काफी अच्छा है, और अगर वो टेस्ट करते हैं तो 130 करोड़ लोग अगर एक गुटखे का पाउच भी 2 रुपए में खरीदते हैं तो 260 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, 260 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और उसमें से अगर 130 करोड़ लोगों में से अगर 10% लोगों ने भी दोबारा खरीदा और उसको अगर पसंद किया उस प्रोडक्ट को, तो 130 करोड़ का जो 1% था वो कितना था और उसका 10% कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1% जो है वो 130 करोड़ लोगों के 1% कितने होते हैं, 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख का 10% कितना होता है, 13 लाख। अगर 13 लाख यानी कि पूरी पॉपुलेशन के 1% जो आया उसके में भी 10% लोगों ने दोबारा से उसको खरीदा, तो उसके 13 लाख जो कस्टमर हैं जो दिन में अगर 5 बार भी गुटखा खाते हैं तो 13 पंजे 65 लाख हो गया। 65 लाख गुटके रोज उसके बिकेंगे। 65 लाख गुटके रोज बिकने का मतलब आप समझते हैं, 1 करोड़ 30 लाख पर डे उसकी टर्नओवर होगी। So in this way, business grows. In this way, entrepreneur, they think before launching any, enterprise or any idea. तो इस तरह से आप सोचिए, जूते की बात करें हम, गुटखे की बात करें या कुछ और किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, आप ये देखिए कि जिस जियोग्राफी में आप टारगेट कर रहे हैं उस टोटल जियोग्राफी की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें एग्जिस्टिंग कितने ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं इस तरीके के, या बिल्कुल नहीं है, तो मैदान साफ है, जितना मैदान नाप लेंगे उतना आपका है। और अगर उस मैदान में पहले से कुछ प्लेयर्स हैं तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है टारगेट ग्रुप को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो इससे बिल्कुल मत आप घबराइए कि ये तो मिलता ही नहीं है या तो बिकता ही नहीं है, इसकी तो डिमांड ही नहीं है, इसका तो मार्केट ही नहीं है। आप ये क्राइसिस जो आप समझते हैं, ये क्राइसिस नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। So now the product or service is already in the market but failed to satisfy the customers. This is also an opportunity. Like प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो प्राइस है, उनका जो डिलीवरी का तरीका है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, या जो कुछ भी हो ब्ला ब्ला ब्ला, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। सो जिन चीज़ों से लोग संतुष्ट नहीं हैं उन वैल्यूज को हम ऐड करें और हम अपने ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें और मैक्सिमम मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, टाई अप करने की, उसको टेप करने की कोशिश करें। सो दिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी इफ सम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स मूव अहेड, सिचुएशनल फैक्टर नंबर 2। So this situational factor number 2 क्या कहता है, either the product is already available excessively, अभी पहले तो अवेलेबल ही नहीं था, या अवेलेबल था तो अच्छी उसमें नहीं अवेलेबल था सिचुएशनल फैक्टर नंबर 1 में,
नाउ सिचुएशनल फैक्टर नंबर 2 क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इतना ज्यादा अवेलेबल है कुछ पूछो मत। भाई नासिक में कितना प्याज होता है, इतना एक्सेसिवली अवेलेबल है, लेकिन किसान तब भी एक साल में 2 या 3 बार नासिक के खेतों में प्याज बोते हैं और वो पूरा बिक जाता है, खूब लाभ कमाते हैं। पर एकड़ जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो दूसरे जो हमारे देश के किसान हैं उनसे बहुत ज्यादा है। मैं एक प्याज का सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। उनमें से कुछ किसान एंटरप्रेन्योर भी बन गए हैं। लाइक किसानी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप है, कैलकुलेटिव रिस्क होता है, वहां मेहनत होती है, फंड लगता है और सारी चीजें होती हैं, वो सब आइडिया एक्सप्लोरिंग सब चीजें हैं वो। लेकिन वो जो प्रोड्यूसर्स जो ऑनियन उनका होता है, तो जब पीक सीजन होता है, जब ज्यादा अवेलेबल है, तो उस समय वो खरीद के उसको स्टोरेज कर लेते हैं और देन थोड़ा सा महंगा होता है तो फिर देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं या इंडियन मार्केट में सब जगह बेचते हैं। नासिक का प्याज पूरे भारत के कोने कोने में आपको मिलेगा, इतना एक्सेसिव है नासिक में, लेकिन और ज्यादा बोते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन डिवाइड है उनका बढ़ता चला जा रहा है। अभी दूसरा क्या करते हैं कि स्टोर कर लिया, तो स्टोर करना ये तो पुराना फंडा है, लेकिन नई चीजें उन्होंने कर ली, वो ड्राइड ऑनियन वाला नया फंडा उन्होंने लॉन्च कर दिया। ऑनियंस को क्लीन करेंगे, कट करेंगे, अच्छी बढ़िया ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, उनके फ्लेक्स बनाएंगे, फ्लेक्स को वो डिहाइड्रेटेड करेंगे, डिहाइड्रेट करके देन उनको छोटे छोटे पाउच में पैक कर देंगे और पैक करके और उनको उनकी शेल्फ लाइफ है 1 साल 6 महीना, और ये सब देश के अंदर भी बेचेंगे, देश के बाहर भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे हैं उनको, उसकी शेल्फ लाइफ भी काफी है, तो अब वो खराब भी नहीं होता है, सड़ेगा भी नहीं, स्टोर करने के लिए उसका वॉल्यूम भी कम हो गया, प्राइस उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ गई। दूसरा, उसके लिए एक नया कंज्यूमर मार्केट में आ गया है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, अभी कौन प्याज काटेगा, कौन आंखों में आंसू लेके आएगा, तो आंखों में आंसू लेके आएगा इसलिए ही प्याज काटेंगे ये नहीं, इसलिए भी कि फिर उसको प्याज को ताजा रखना पड़ता है, खरीद के लाना पड़ता है, एंड इट इज अ रिकरिंग प्रोसेस, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इसको करना पड़ेगा, नहीं तो प्याज खत्म हो जाएगा ना, तो उसको मार्केट लेने जाना पड़ेगा, उसमें अलग से टाइम लगेगा, दोनों वर्किंग है, अभी दोनों वर्किंग है, तो वो ड्राई फ्लेक्स ऑनियन के मार्केट से लेके आते हैं और देन उसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको घुमाते हैं और प्याज का पेस्ट तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही, वही टेस्ट, वही लाइक खुशबू और वही सारी चीजें, वही सब, वो ग्रेवी वैसी बना लेगा अपनी ड्राई ऑनियन से, उसके लिए बड़ा आसान है इसको रखना, खरीदना इकट्ठा महीने के राशन के साथ, तो पैसा ज्यादा मिल रहा है इधर एंटरप्रेन्योर को, उधर उसको कंज्यूमर को फैसिलिटी मिल रही है, उसके ऊपर रिसर्च किया उसने कि ये प्याज का और क्या कर सकता हूं मैं, तो सेम ऐसा ही गार्लिक का है, सेम ऐसा ही जिंजर का है, सेम ऐसा ही दूसरे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ड्राई वेजिटेबल्स आजकल अवेलेबल हैं, इसका चलन है। दिस इज द वन एग्जांपल व्हिच आई एम पुटिंग बिफोर यू, एंड देयर आर सो मेनी सेवरल एग्जांपल्स आर देयर कि वो है वहां। अभी आप देखेंगे ई व्हीकल्स आ रहा है, इतना ई कार्स आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके चार्जिंग स्टेशन की वजह से लोग नहीं खरीद रहे हैं, सो दैट इज अनदर वेरी क्रूशियल लाइक थिंग, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अनुराग जी अगर यहाँ पे अभी हैं, अनुराग जी के पास में हम हमेशा हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं एक्सपोजर विजिट के लिए, तो आपका जो सोलर वाला जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन वाला जो मॉडल है उसको देखने के लिए हम भेजते हैं। आप देखें कि अगर इस बारे में देखा जाए कि ई चार्जिंग स्टेशन हम जगह जगह खोल दें या उसके लिए हम अगर से अलग से प्लानिंग करें, तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल, वो एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा आने वाले भविष्य में, तो दैट कैन आल्सो बी लाइक, इस तरह से आप सोच सकते हैं। अभी इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर, उन सब चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करते हुए, मैं स्टार्टअप्स में आप समझते होंगे, आप लाइक ऐप पे जाइए, आपको खाने का भी मिल जाएगा जिस रेस्टोरेंट का चाहिए। अभी अहमदाबाद में हमारा ईडीआई का डेवलप किया हुआ है, एक स्टार्टअप है, तो वो आपको चाय या कॉफी लेके आ जाता है आपके वर्क प्लेस पे, आप ऑर्डर कीजिए 10-20 मिनट्स में वो गर्मा गर्म चाय कॉफी, एंड ही हैज एम्पल ऑफ वेराइटीज, वो बहुत सारी तरह की चाय आपको दे सकता है। तो अभी आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं कि प्रोडक्ट अगर एक्सेसिवली अवेलेबल है तो पक्का वो प्रोडक्ट कहीं किसी दूसरे एरिया में कम अवेलेबल होगा, उसकी क्राइसिस होगी वहां, एंड दैट इज द मार्केट, दैट इज द प्रॉस्पेक्टिव मार्केट। नासिक में प्याज इफरात में अवेलेबल है, जहां नहीं अवेलेबल है वहां उसका मार्केट है। ओके, तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि एक्सेसिवली है तो कहीं और एक्सप्लोर कीजिए मार्केट को, वहां मार्केट अवेलेबल होगा, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कमी है तो दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, कि ये यहाँ नहीं मिलता है तो वहाँ जहाँ मिलता है ज़्यादा वहाँ से लाके यहाँ पे वैल्यू एड करके बेचा जा सकता है या वैसा का वैसा बेचा जा सकता है, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। सो ये मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ।
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपका आइडिया है उस आइडिया से रिलेटेड जो भी जरूरी बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, आइदर फाइनेंशियल लाइक सपोर्ट आपको चाहिए या आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन है, प्लांट है, आइडिएशन के लिए, इंक्यूबेशन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, या उसके लिए जो भी आपको टेक्निकल लीगल सपोर्ट चाहिए, या आपको उसका जो रॉ मटेरियल है रिक्वायर्ड वो कहाँ से मिलेगा, साल भर मिलेगा नहीं मिलेगा, किस कीमत पे मिलेगा, कितना दूर अवेलेबल है, लाइक दूसरे देश से तो नहीं लेके आ जाना पड़ेगा। तो वो ये सारे बैकवर्ड लिंकेजेस को यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वाइल यू लाइक वो जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके बाद जो WH वाली बात है, ये WH के पॉइंट्स हैं सारे के सारे, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, वो वाला है ये सारा का सारा। तो बैकवर्ड लिंकेजेस को आप समझ लीजिए कि बैकवर्ड लिंकेजेस हो सकता है कोई आइडिया अच्छा हो, वो लाइक उसका अच्छा मार्केट हो या उसका अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो, लेकिन उसके लिए जो जरूरी बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसको आपको साथ में रख के एसेस करना पड़ेगा कि आइदर दैट आइडिया इज फीजिबल और दैट इज नॉट ए वेरी फीजिबल आइडिया। तो वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन लाइक आप अच्छा एक डिसीजन यहाँ पे ले सकें। अभी फॉरवर्ड लिंकेजेस की भी बात है। कोविड वैक्सीन बन गया, कोविड वैक्सीन बन गया, लेकिन उसकी जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें अलग से कुछ एक्सपेंसिव या कास्ट इम्प्लीकेशंस उसमें आते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल आपको मैं लाइव अभी का बता रहा हूँ। तो फॉरवर्ड लिंकेज आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, उसका जो वॉल्यूम है, क्या ऐसा तो नहीं ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा आ जाएगा जो कि प्राइस को बढ़ा देगा या आपके मार्जिन को घटा देगा, क्या कर देगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फॉरवर्ड लिंकेजेस को, उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, या उसका मान लीजिए रिफंड अगर आता है मतलब वापस करता है कस्टमर, आजकल वो भी एक तरीका है। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। तो अभी 1:27 हो गया है और मैं अपनी बस आखिरी की स्लाइड्स की तरफ जा रहा हूँ, हालांकि आगे वो स्लाइड्स हैं मेरे पास में, लेकिन जो मुझे बात आपसे कहनी थी फेजेस के बारे में या उसको आइडेंटिफाई करके उसके प्लान बनाने के बारे में, वो बातें मोटा मोटी मैंने आपसे यहाँ पे की हैं। So whenever you like try to identify any opportunity, then opportunity identification process that involves the search और discovery, काय के लिए, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइक जहां जरूरत है और जहां उस जरूरत को पूरी करने का साधन यानी कि प्रोडक्ट है, उन दोनों को मिला देना। ये एक ऐसी पजल है, इस पजल को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये सारी चीजों को करने के लिए 4 जो की फोर्सेस होते हैं, लाइक इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी जो भी स्टेच्यूज होते हैं। तो ये 4 की फोर्स हैं इसमें। लाइक वहाँ हमारे देश की अभी इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, जैसे इकोनॉमी जिस दिशा में बहती है उसके हिसाब से इस बिजनेस के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ें माइन्यूटली आपको थोड़ा समझना पड़ेंगी। सोशल फोर्सेज आपको समझना पड़ेगा, लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं दैट इज वो कुछ नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट उसमें मिला हुआ होता है, जिलेटिन ही मिला हो, भले वो आइसक्रीम बनाएंगे और जिलेटिन मिला है उसमें, या कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कोई ऐसा नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, और वहाँ जहाँ आप मार्केट प्लान कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा जैन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैन माइथोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये सोशल फोर्सेज इस तरीके के होते हैं। या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल लगता है तो वो आसपास के रहने वाले लोग कहते हैं बदबू आती है, गंदगी होती है, धुआं होता है, शोर होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ से ट्रक्स गुजरते हैं भर भर के बार बार, तो डस्ट उड़ती है। तो दीज आर द सोशल फोर्सेज। सोशल फोर्सेज भी इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट या जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया को लाइक सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से भी आपको एसेस करना होता है व्हाइल यू आर असेसिंग द WHO, डिसाइडिंग द और फाइनलाइजिंग द WH। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को आपको देखना पड़ेगा। अभी आप अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसी खोल देते हैं जो पहले होती थी, जिसमें वो लाइक जो कंपोजिंग का काम होता था, अलग अलग लेटर्स को जोड़ना होता था, एक प्लेट बनती थी और मैनुअली वो हाथ से घुमाते थे या पेडल ऑपरेटेड होती थी और एक बार में एक कागज रख देता था, देन वो पूरा का पूरा लाइक लीवर उसको उठा के लेके आता था प्लेट को, उसके ऊपर छाप देता था, फिर अलग हो जाता था, इतनी समय मिलता था, दूसरा कागज रख देता था और प्रिंट होता था। सो दिस इज these sort of technologies are outdated। आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इसमें क्या हो गए हैं और क्या आने वाले हैं, इमर्जिंग क्या है।
तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइक पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी जो भी स्टेच्यूज हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट और जो भी मार्केट आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारे जो भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज क्या कहती हैं। सिलेक्शन के जो बेस हैं वो बहुत सारे लाइक अलग अलग हैं, आप देखिए समझेंगे तो थोड़ा दिमाग शायद खुलेगा हमारा कि द ओन, या हमारा जो अपना अनुभव होता है, पार्टनर का अनुभव होता है, परिवारजन का या किसी मित्र रिश्तेदार व्यापारी का जिससे बातचीत हुई हो उसके अनुभव के हिसाब से हम सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं कभी कभी, ये भी एक तरीका होता है। गवर्नमेंट की जो प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं उनसे अट्रैक्ट होकर भी, या उनसे प्रमोशनल स्कीम के अलावा कई कई पॉलिसी ऐसी भी होती है कि उनसे डर के कारण हम नहीं लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी क्रूशियल बेस। फैसिलिटीज ऑफर टू रन सम स्पेसिफिक बिजनेस एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट बहुत सारी लाइक ऐसी कुछ इंसेंटिव्स देती है कुछ एंटरप्राइजेस के ऊपर, वो भी एक वजह हो सकती है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी लाभ की मार्जिन अच्छी है, वो एक अट्रैक्शन हो सकता है। डिमांड अच्छी हो, अच्छी डिमांड वाले प्रोडक्ट्स को भी लोग चाहते हैं, अच्छा इसकी अच्छी डिमांड है इसको कर लें हम। इनपुट्स अवेलेबिलिटी की बात करें, रॉ मटेरियल या लेबर या टेक्नोलॉजी या चीपर रेट्स, जो कुछ भी वो, तो ये बात हो सकती है। एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं या प्लान्स हो सकते हैं, उसके आधार पे भी लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। देन प्रोडक्ट्स रिजर्व फॉर एमएसएमई और सर्टेन लोकेशंस, अगर रिजर्वेशन कुछ है गवर्नमेंट सप्लाई के लिए, मार्केट के लिए, तो इस आधार पे भी ले लेते हैं, या अच्छे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं इस आधार पे भी ले लेते हैं। बस 5 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा अपनी बात को, देन फिर क्वेश्चन आंसर सेशन वाले फेज में हम एंटर करेंगे। सो रिसोर्स बेस्ड हो सकता है, जेंडर बेस्ड हो सकता है, नीड बेस्ड हो सकता है, वांट बेस्ड हो सकता है। देखिए नीड और वांट्स में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। रोटी कपड़ा और मकान या जो जरूरी चीजें हैं वो हमारी नीड है। आजकल लोग इस पे भी बहस करते हैं कि मोबाइल नीड है कि वांट्स है, मोबाइल जरूरत है कि लग्जरी है। तो वांट्स का मतलब लाइक मेकअप करना या मसाज करना या जिम जाना या लाइक दूसरी तरह की जो भी लग्जरियस फैसिलिटीज होती हैं, ऑल दोस फैसिलिटीज और दो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वांट्स, वो लग्जरी वाली बात है। लेकिन नीड यानी ये तो चाहिए, तो ये किस नीड की तरह है जो कि बिकेगा ही बिकेगा, चलेगा ही चलेगा। और वांट्स बेस्ड है तो फिर उसका प्राइस हम ज्यादा रख सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा के उसमें कितने भी पैसे वसूल कर लेंगे तो लग्जरी के नाम पे जिस टारगेट ग्रुप को हम टारगेट करेंगे वो हमारे को उतना पैसा देगा। डिमांड बेस्ड है, सप्लाई बेस्ड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, स्किल ड्रिवन है, रेसिपी ड्रिवन है या ओकेजनली बेस्ड है। लाइक अगर पूजा पाठ की सामग्री की दुकान खोलने, हर तरह की पूजा पाठ की सामग्री, हर तरह की धार्मिक किताब, हर तरह के रिचुअल्स के लिए, लाइक बच्चा पैदा हुआ है, शादी हुई है, एनिवर्सरी है, सत्यनारायण की कथा है, गृह प्रवेश है, मृत्यु हो गई है, कुछ और लाइक श्राद्ध कराना है या कुछ भी, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये तरीका है, लाइक हम किस सेक्टर, किस टारगेट ग्रुप, किस उसको करना चाहते हैं। देयर आर मेनी मोर बेसिस फॉर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये नॉर्मल एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप के बारे में आप अपने आईआईसी में जाइए, वहां दिख जाइए, बात कीजिए, उसकी क्या एक इनोवेटिव आइडिया कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। दिस इज द लास्ट स्लाइड वेयर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। लाइक द प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर, जो भी इनोवेटिव आपका आइडिया हो या जो कुछ भी आपका आइडिया है, कन्वेंशनल आइडिया है, डिमांड बेस्ड है, सप्लाई बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, स्किल ड्रिवन है, वट एवर इट इज। आजकल देखिए नए नए शब्द आ गए हैं, स्किलप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, एग्रीप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही पहले से। तो ये जो भी नई नई चीजें आती जा रही हैं उसकी तरह वर्कप्रेन्योरशिप, वो एक नई चीज आ गई। अभी अब आप देखेंगे तो इस तरह से जो प्रपोज जो भी बिजनेस वेंचर आपका है उसमें थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा टाइम लगा के उसके बारे में R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, WH को अच्छे से समझिए। वो WH छोटा शब्द है लेकिन उसको अच्छे से, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसकी लाइक बाल की खाल निकालेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा डीपर उसमें जाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होके उसके बारे में जानकारी आप करेंगे, और ये 4 आपके जो ऐसे लाइक मेजर्स हैं इनके ऊपर आप उनको एसेस कीजिए। मेजर्स क्या है? प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस आपने आइडेंटिफाई किया है, जो भी आइडिया आपका, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसका इंडस्ट्री या मार्केट फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैसा बन रहा है, ठीक है या गलत है। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, लाइक इतना इन्वेस्टमेंट होगा, प्लांट मशीनरी इतने लोग लगाने पड़ेंगे, मंथली इतने खर्चे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कैसी फिजिबिलिटी उसकी बैठती है। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, लाइक जितना फाइनेंस उसमें चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल उसमें चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में वो वर्किंग कैपिटल दोबारा लौट के हमारे पास आ जाएगी, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को आप असेस कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक फाइंड के लाइक सारी चारों फिजिबिलिटी हमारी यस फिजिबल 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 ऐसा कुछ आता है तो गो है, कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़िए, प्रोसीड विद योर आइडिया, प्रोसीड विद योर बिजनेस प्लान। एंड इफ यू गेट एनी वन नो,
लाइक एक में भी अगर आपको नो मिले या एक से ज्यादा में भी अगर आपको लगे फिजिबल नहीं है या कुछ कंफ्यूजन लगे, देन यू विल हैव टू ड्रॉप द आइडिया, यू अदरवाइज यू विल हैव टू रीथिंक ओवर योर आइडिया, रिफाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब उसको करिए। ये ऐसा नहीं है चलो करके तो देखते हैं, चलो करके तो देखते हैं ना, तो उसमें वो जो लाइफ साइकिल की मैंने बात की थी ना, अगर गलत करेंगे तो फिर दोबारा से स्ट्रगल वाले फेज में भी आ सकते हैं आप, वो रिवर्स भी चलता है वो साइकिल। So this is what I have to say, I have to share with you। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा और स्टॉप करने के बाद में मैं यहाँ पे लास्ट एक स्लाइड आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर ये सारी बातों से वाकई में आप प्रभावित हैं, इस तरह से आपने करियर को एंटरप्रेन्योर जर्नी के रूप में परस्यू करना चाहते हैं, तो चाहे जॉब सीकर हो चाहे जॉब क्रिएटर हो, यू विल हैव टू रिप्लेस योर विश टू विल, you will have to replace your wish to will। तो ये आप कर लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब नाउ हम तरुण बेदी सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर आप भी ज्वाइन करें, जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पार्टिसिपेंट्स के अगर होंगे तो हम उनको आंसर करना चाहेंगे। Sir, there is one question. Someone asked, sir, please tell the startup plan for making a industry or company setup. Sir, Tarun sir. Yes, yes, yes. Sir, there is one question. Hmm. Sir, please tell the startup plan for making a industry or company setup. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन शायद हनीफ जी के प्रेजेंटेशन के पहले पूछा गया था। Yes. अभी इसके ऊपर काफी क्लैरिटी उनको हो गई होगी कि किस तरह से स्टार्टअप को प्लान करना है, राइट? कोई अगर उसके ऊपर कोई और स्पेसिफिक पॉइंट हो तो उनसे बोलिए, फिर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से पूरे प्लान जो है वो डॉक्टर हनीफ ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। Yes, sir. Participants, you have any doubt or any question? Please ask. Sir, one more question. How to apply for loan for construction company for 50 to 70 crore? देखिए, ये कंस्ट्रक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक या स्पेशल स्कीम नहीं है, और जो भी स्कीम्स हैं वो उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना होगा। जैसे मैंने एक स्कीम की जानकारी दी थी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अलावा राज्य सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप उन स्कीम को पढ़िए और उसमें देखिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप डायरेक्ट बैंक में भी अप्रोच कर सकते हैं और वहां पर जाकर भी अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लोन अमाउंट जो भी आपको चाहिए है वो ऐसा नहीं है कि आप जाकर पैसा मांगेंगे और आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको पूरा एक बिजनेस प्लान डेवलप करना होगा, और उस बिजनेस प्लान को डेवलप करके आप डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज पर जा सकते हैं, जिसमें बैंक भी एक है। इसके अलावा अदर फंड के लिए बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं, जिस पर आपको आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जो RNTU का, या IIC है, वहां पर भी आपको जाकर इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें मैं और ऐड कर दूं, जो पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए 50 to 70 करोड़ का लोन का अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो देखिए आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कोई भी बैंक इवन जनरल टर्म लोन की स्कीम में भी आपको जमीन खरीदने के लिए, देन फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेबर के पेमेंट के लिए, मटेरियल के लिए, या जो भी सारी चीजें हैं उसके मार्केटिंग प्रमोशन के लिए, यूटिलिटीज के लिए, या जो HR सपोर्ट आपको लगेगा उस सब के लिए, सभी चीजों के लिए लोन दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। उसके लिए आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए लैंड है 50 एकड़, और 50 एकड़ लैंड की अगर कुछ वैल्यू है आपकी, से
1 करोड़ रुपीस पर एकड़ है तो 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ रुपीस की अगर आपकी लैंड है, उस लैंड के ऊपर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो आपको बैंक के पास में ऑफिशियली जो तरीका है उसके हिसाब से आपको मॉर्गेज रखना होगी या हाइपोथिकेशन पे आपको रखना होगी। एक बिजनेस प्लान आपको बनाना होगा, उसका असेसमेंट करवाना होगा कि वहाँ पे क्या आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन इज ए वेरी कॉमन शब्द है कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी आप बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी आप बनाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। तो ये इतने शॉर्ट में उसमें आपकी बात का वैसा जवाब कुछ नहीं दिया जा सकता कि 1 पॉइंट अगर कोई जवाब दे दें तो। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू, थैंक यू। Mewati sir, one more question. Can you explain life cycle one more time? यस, व्हाई नॉट। देखिए, आप बच्चे होते हैं और बच्चे होने के बाद में आप स्टूडेंट हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट की आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और स्टूडेंट के बाद में आप एक एस्पिरेंट के रूप में अपने करियर को परस्यू करने के लिए आप कोशिश करते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको कहीं कोई जॉब करना है। अगर स्टूडेंट रहते समय अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समय आपको एस्पिरेंट के रूप में नहीं गुजारना पड़ता है। कभी कभी आप डायरेक्ट स्टूडेंट से सीधे करियर में अपने एंट्री पा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक एस्पिरेंट रहेंगे तो उसका कारण होता है कि स्टूडेंट वाली लाइफ में आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, आपने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जो भी आपका वातावरण है, जो भी आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, उसके हिसाब से अच्छे से तैयारी नहीं की, तो आपका स्ट्रगल लंबा हो जाता है। स्ट्रगल लंबा हो जाएगा तो फिर आपको आएगा, अरे प्रेशर आएगा, सोशल प्रेशर आएगा, फैमिली का प्रेशर आएगा, खुद का भी प्रेशर आएगा, कुछ तो कर लो, कुछ तो कमाने लगो, तो देन करियर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको। और अगर आप करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो अभी की जो लाइफ है, इसी लाइफ में आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप अपनाते हैं तो लाइफ टाइम के बहुत सारे अचीवमेंट आप पाएंगे, मतलब कुछ छोड़ के जाएंगे, किसी को गिफ्ट कर सकेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, दूसरों को रोजगार देंगे, देश को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, घर को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारी वजहें उसकी हो सकती हैं। रिटायर कभी नहीं होंगे और बहुत सारी चीजें हैं। जितना चाहे उतना आगे बढ़ेंगे, आपकी पीढ़ियां आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगी। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, हम जो बात करते हैं ना, या जैक मा की बात करते हैं, किसी की भी अगर हम बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, जो बेजोस की बात हम करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कल को आने वाली पीढ़ी में आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर अपनाते हैं तो। दिस इज द लाइफ साइकिल जो हम सोचें। और जॉब भी करना है तो जॉब करने के लिए भी आप अपने बिहेवियर को, अपने एप्टीट्यूड को इस तरह से डेवलप कीजिए कि जिस कंपनी में जॉब करेंगे उसको अपना समझ के आप काम करेंगे। देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो आपका करियर पाथ बहुत रैपिडली आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनीबडी हैज टू नीड टू अंडरस्टैंड। इवन ये मेरे ऊपर भी लागू है, ये मेरे ऊपर भी लागू है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये दोबारा से जो बताया है तो अब क्लियर और ज्यादा अच्छे से हो गया होगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आज का जो सेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल रहा और रहा भी है। स्वरोजगार से उद्यमिता तक के सफर को सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, इसके अंतर को हमें समझाया, साथ ही हमें ये भी बताया कि हम सफल उद्यमी किस प्रकार बन सकते हैं। न्यू स्किल्स, नॉलेज, आइडिया ये होना चाहिए और इन्हें किस तरीके से और अच्छे से निखारा जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से सर ने हमें बताया। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स को सर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में भी बताया, जिससे कि हम श्योर है कि हमारे स्टूडेंट्स एक सफल उद्यमी बनेंगे। नाउ I would like to invite Dr. Deepti Maheshwari ma'am, Dean, Faculty of Commerce, for proposed vote of thanks. Welcome. थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति माहेश्वरी, वाणिज्य कला और प्रबंधन आईटी विभाग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से श्री तरुण बेदी जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने उद्यमिता के विषय में अपने विचारों को हमारे साथ में साझा किया और साथ साथ अपना बहुमूल्य समय इन आगामी उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मार्गदर्शन देने के लिए सर ने किया। इसके लिए सर बहुत बहुत हृदय से आभार और साधुवाद। इसी के साथ इस वेबिनार के दूसरे अतिथि वक्ता डॉक्टर हनीफ मेवाती जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंच से उद्यमिता विकास के चरणों के बारे में बहुत अच्छे से सभी प्रतिभागियों को गहराई से इन बातों के बारे में समझाया, लाइफ साइकिल के बारे में बताया कि एक साइकिल किस तरह से एक प्रोडक्ट की चलती है, किस तरह से आइडिया जनरेट होता है, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। सर ने बड़ी गहराई से अपनी बात को रखा। मुझे उम्मीद है
कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं, उन्होंने इन सब बातों को गहराई से सुना होगा और नोट भी किया होगा, जिससे आने वाले समय में अगर वो बच्चा उद्यमी बनना चाहता है तो उसको सही दिशा निर्देश आज उसको मिल पाया है। इसी के साथ वेबिनार के सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करूंगी जो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहे और उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछकर ये सिद्ध किया कि उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे वेबिनार को सुना और अपनी बातों को रखा। इसी के साथ साथ मैं अपनी पूरी आयोजकों की टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।